Uh, Good afternoon, everyone. I, Ravinder Pant, on the behalf of Atma Ram Sanatan Dharma College and नमस्कार. Ramanujan College, नमस्कार नमस्कार सर. welcome you all to the वेलकम सर, वेलकम. welcome, sir. हाँ रविंदर, प्लीज कंटिन्यू. Sure, sir, sure. So, I, on the behalf of Atma Ram Sanatan Dharma College and Ramanujan College, welcome you all to the second session of the eighth day of our ongoing refresher course on holistic empowerment for stress management, a multidisciplinary approach integrating literature, arts, social sciences, and medicine. We now move forward to the much anticipated session that brings together profound clinical expertise and a deep understanding of mental well being in the most comprehensive manner. आज का ये सत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हमारे बीच एक ऐसे विशेषज्ञ मौजूद हैं जो न सिर्फ मानसिक स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित नाम है बल्कि एक गहन मानवीय दृष्टिकोण के साथ कार्य करते हैं. It is my privilege and honor to introduce our distinguished speaker for this session, Dr. Deepak Gupta, a name synonymous with the dedicated service and transformative work in the field of child and adolescent mental health. Dr. Gupta is a senior child and adolescent psychiatrist affiliated with the Center for Child and Adolescent Wellbeing, Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi. He is the founder and director of the Center for Child and Adolescent Wellbeing (CCAW), a pioneering institute that has impacted countless lives through its integrative approach to the mental illness. एक ऐसा संस्थान जो बच्चों और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य को संपूर्ण रूप से समझने और बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. In addition to his clinical excellence, Dr. Gupta has played key leadership roles in various prestigious bodies. He has been the chairman of the Child and Adolescent Psychiatry Committee of Indian Association of Private Psychiatry IAPP 2021 and 22. And he has also been served as the president of the Delhi Psychiatry Society 2014 to 16. His contributions have been recognized nationally, having received numerous accolades, including the Golden Aim Award for Excellence and Leadership in Healthcare 2020, the President Appreciation Awards 2010, and the Eminent Medical Person Award by Delhi Medical Association 2011, and many more. He is also an accomplished author, having contributed to numerous book chapters and research publications, both in national and international platforms, further advancing the discourse on mental health. Today, Dr. Gupta will be speaking on the highly relevant topic and enriching topic holistic empowerment for stress management, a bio, psycho, socio spiritual approach. In a time where stress has become a silent epidemic, his insights into the integrative and multidimensional strategies for mental well-being will undoubtedly equip us with valuable perspectives both professionally and personally. Please join me in warmly welcoming Dr. Deepak Gupta. Dr. Gupta, virtually the floor is yours. गुड आफ्टरनून, नमस्कार आप सबको. पहले मैं प्रिंसिपल सर को थैंक यू वेरी मच जो मुझे एक मौका दिया, अवसर दिया, और रविंद्र जी को जिन्होंने बड़े प्यार से शब्दों से मेरा स्वागत किया. थैंक यू वेरी मच. और मेरा ये सौभाग्य है कि आज मैं आप सबके सामने, इस एस्टीम फैकल्टी के सामने, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सामने, मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ अपने कुछ ख्यालों को, कुछ बातों को. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है होलिस्टिक एम्पावरमेंट फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट. मुझसे पहले लेक्चर हुए, आज सुबह मॉर्निंग में लेक्चर हुए, तो मैं डायरेक्टली टॉपिक पे जाना चाहता हूं कि स्ट्रेस है क्या. व्हाट इज स्ट्रेस? लोग कहते हैं स्ट्रेस क्या है. क्या स्ट्रेस इज समथिंग, कैन वी डिफाइन इट? यस, वी कैन डिफाइन इट. बहुत डेफिनेशन है स्ट्रेस की. उसी तरह हम स्ट्रेस को डिफाइन कर सकते हैं अगर हम चाहें तो हम. लेकिन एक्चुअली है क्या स्ट्रेस? तो इन सिंपल डेफिनेशन, स्ट्रेस इज द फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू इंटरनल एक्सटर्नल स्ट्रेसर. कोई भी स्ट्रेसर आता है, कोई भी सिचुएशन आती है, उसके अंदर हमारी बॉडी और हमारा माइंड कैसे रिस्पॉन्ड करता है, वो है स्ट्रेस. अगर हम अच्छी तरह रिस्पॉन्ड कर लेते हैं तो वो बन जाता है यू स्ट्रेस, और अगर वो हम गलत तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं तो बन जाता है डिस्ट्रेस. सो इन सिंपल वर्ड्स, stress is how our mind and body reacts when we feel overloaded, threatened or challenged beyond our capacity to cope. हमें पता है जिंदगी में
तनाव आता रहता है, जिंदगी में चैलेंजेस आते रहते हैं, छोटी छोटी बातें राई का पहाड़ बन जाती हैं, हमारे लिए मुसीबतें आ जाने लगती हैं, हमारी ऐसी चीजें आती हैं जो हमारे अस्तित्व को वो हिलाती हैं, हमारी सोच को हिलाने में मजबूर कर देती हैं। तो उस वक्त हमारा माइंड और बॉडी कैसे रिएक्ट करता है, वो है सारा स्ट्रेस। अगर हमने उसको अच्छी तरह रिएक्ट कर लिया तो वो बन जाता है यू स्ट्रेस, यू स्ट्रेस। और अगर हम उस स्ट्रेस के वक्त हिल गए, परेशान हो गए, हमारे पे क्वेश्चन मार्क आ गया, है ना, तो उस वो बन जाता है डिस्ट्रेस। तो इसका मतलब है कोई भी रिएक्शन होगा वो तो स्ट्रेस है ही, लेकिन क्या वो परेशान कर रहा है या क्या हम उसके अंदर अडेप्ट हो रहे हैं। इफ इट इज अडेप्टिव इट बिकम्स यू स्ट्रेस, इफ इट इज मैल अडेप्टिव इट बिकम्स अ डिस्ट्रेस। तो सारा खेल इसी बैलेंस का है। जो लोग कहते हैं ना कि कैसे आप बैलेंस बनाते हो लाइफ में, लाइफ वर्क बैलेंस क्या है, जिंदगी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ का बैलेंस क्या है, सारा खेल यही है, अडेप्टिव टू मैल अडेप्टिव, यू स्ट्रेस टू डिस्ट्रेस। एक स्पेक्ट्रम है ये, और हम रोज इस स्पेक्ट्रम में झूला झूलते रहते हैं। हम इस झूले के अंदर करते रहते हैं। कभी हमारा झूला एक साइड चला जाता है डिस्ट्रेस, और कभी हमारा झूला यू स्ट्रेस में चले जाता है, और कभी कभी वो संयम में रहता है। वो संयम, वो बैलेंस, वो इंपॉर्टेंट है। इसी के बारे में और विस्तार में डिटेल में हम बात करेंगे धीरे धीरे। सो दिस इज व्हाट इज द माय इनिशियल पर्सपेक्टिव ऑन ऑल दीज थिंग्स। नाउ नाउ लोग पूछते हैं कि स्ट्रेस का कुछ नुकसान है, क्या हो गया, होने दो स्ट्रेस को, स्ट्रेस हो रहा है तो होने दो, क्या प्रॉब्लम है, किसको स्ट्रेस नहीं है। डॉक्टर्स को तो स्ट्रेस है, नर्सेस को तो स्ट्रेस है, प्रिंसिपल्स को तो स्ट्रेस है, टीचर्स को तो स्ट्रेस है, स्टूडेंट्स को तो स्ट्रेस है, हस्बैंड्स को स्ट्रेस है, वाइफ को स्ट्रेस है, घर वालों को स्ट्रेस है, इन लॉज को स्ट्रेस है, मदर इन लॉ को स्ट्रेस है, छोटे 4 साल के बच्चे को स्ट्रेस है। जब मेरे पास 4-5 साल के बच्चे आते हैं स्ट्रेस में, तो लोग कहते हैं कि 5 साल के बच्चे को स्ट्रेस कैसे हो सकता है। मैं कहता हूं होता है, तभी तो मेरे पास आ रहे हैं, उसको स्ट्रेस हो रहा है। तो इसका मतलब है स्ट्रेस किसी को नहीं छोड़ता, स्ट्रेस को हैंडल करना सीखना हमने, या तो हैंडल करना सीखना है या हमें दूसरों को सिखाना है। क्योंकि स्ट्रेस का इफेक्ट है, स्ट्रेस हैज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। द क्रॉनिक एंड एक्सेसिव स्ट्रेस कैन हार्म आवर फिजिकल हेल्थ, इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड। और वहीं से वर्ड आया था साइकोसोमैटिक। और अक्सर लोग कहते हैं अब 70 to 90%, और सम पीपल तो ज्यादा स्ट्रेच करके कहते हैं, इवन द स्टडीज फ्रॉम मेयो कॉलेज ऑफ दिस थिंग फ्रॉम यूएसए, मेयो क्लिनिक्स जो है, जो मेयो क्लिनिक की स्टडीज हैं, वो तो ये भी कहते हैं कि 95% ऑफ कंडीशन इन टूडेज वर्ल्ड इज साइकोसोमैटिक। इसका मतलब हमारा जो स्ट्रेस है वो हमारे को हार्म कर रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है हमारी फिजिकल हेल्थ को, चाहे वो हेडेक्स हो, चाहे वो मांसपेशियों में तनाव हो, चाहे हमारी बॉडी में पेन हो, चाहे हमारे हमारे हमारी बॉडी में पेन हो, जॉइंट्स में पेन हो, चाहे हार्ट की प्रॉब्लम्स हो, चाहे ब्लड प्रेशर हो, चाहे थायराइड बढ़ जाए, चाहे एस्थमा अटैक्स बढ़ जाए, चाहे छाती में दर्द हो रहा हो, चाहे पेट की प्रॉब्लम्स हो, गैस्ट्राइटिस हो, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो, करेक्ट, चाहे 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 उसके अलावा यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो, कुछ यूरिनरी प्रॉब्लम्स है जहाँ पे वो इम्पैक्टेड है। सो दैट्स व्हाट। तो इसका मतलब हमारी फिजिकल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, चाहे वो हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो उसका भी। फिर हमारी इमोशनल वेलबींग को इम्पैक्ट करता है स्ट्रेस। हमें एंग्जाइटी शुरू हो जाती है, हमें इरिटेबिलिटी शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे वो एंग्जाइटी इरिटेबिलिटी वो डिप्रेशन का रूप लेती है। और वो डिप्रेशन में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते इतनी नकारात्मक सोच बढ़ जाती है, इतनी नेगेटिव थॉट्स बढ़ जाते हैं, वो कभी कभी वो गलत डायरेक्शन में जाके वो कभी कभी सुसाइडल का रूप भी ले लेती है। जो हम आजकल खबरें सुनते हैं, रोज ही रोज खबर सुनते हैं, किसी ना किसी की अनफॉर्चुनेट हम खबर सुनते हैं पेपरों में या सोशल मीडिया पे, कि कैसे उस इंसान ने अपने आप को खत्म कर लिया। दैट्स व्हाट द एंड स्टेज बिकम्स। तो इस तरह वो हमारी इमोशनल वेलबींग को भी इम्पैक्ट करता है, हमारे रिलेशनशिप को इम्पैक्ट करता है स्ट्रेस। तो रिलेशनशिप से स्ट्रेस हो सकता है, और स्ट्रेस हमारे रिलेशनशिप को इम्पैक्ट कर सकता है। तो विशियस साइकिल है। तो क्रॉनिक और एक्सेसिव स्ट्रेस हमारी फिजिकल हेल्थ, इमोशनल वेलबींग और सोशल रिलेशनशिप किसी को नहीं छोड़ता। ये वो दीमक की तरह जो हमें खोखला करता रहता है, एक दीमक की तरह जो हमें खाली कर देता है, अंदर से इतना खालीपन ले आता है कि हम खुद ही परेशान हो जाते हैं। और जिसके साथ एक नया शब्द जोड़ा गया है वो है लोनलीनेस।
लोगों ने लोनलीनेस के बारे में बात करना बहुत कर दिया है। कुछ पूरे पूरे देश, कुछ देशों में मिनिस्ट्री ऑफ लोनलीनेस भी क्रिएट कर दी गई है, क्योंकि लोगों के अंदर अकेलापन इतना बढ़ता जा रहा है, और उसके पीछे एक सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेस। और यही स्ट्रेस है जो हमारी बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है एकदम से, और उसके पीछे होता है हमारे कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन। तो जैसे कुछ दिक्कत आई, हमारी बॉडी में फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स आया, और फिर कॉर्टिसोल और एड्रेनलिन रिस्पॉन्स रिलीज हुए हार्मोन्स, और वो सारी हमारी बॉडी के अंदर वो रिएक्शन क्रिएट करते हैं। सो स्ट्रेस बाहर से आ रहा है और अंदर बॉडी में रिएक्शन हो रहा है। स्ट्रेस तो बाहर एक्सटर्नल है, देखिए आप, तो देखिए बाहर वाली चीज हमारी बॉडी के अंदर उथल पुथल मचा देती है, हमारी बॉडी में हलचल मचा देती है, हमारी बॉडी में एक रिस्पॉन्स क्रिएट करती है, जिसकी वजह से हमारे हार्मोन्स पे इंपैक्ट पड़ता है, और वो हमारे हार्मोन्स हमारी बॉडी के अंदर पूरा केओस क्रिएट करते हैं। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा रेड लाइट का। लाल बत्ती पे, जब हम लाल बत्ती क्रॉस करते हैं, लाल बत्ती पे क्या होता है, रेड लाइट दूर से हम देखते हैं, येलो हो गई, रेड हो गई, गाड़ी रुक जाती है, अरे फिर येलो हो गई, ग्रीन, गाड़ी चली जाती है। कुछ लोगों को रेड लाइट को देख के स्ट्रेस आ जाता है, और थोड़ी देर बाद वहां पे ट्रैफिक जैम लग जाता है। अब वो ट्रैफिक जैम जब लग जाता है, हम परेशान और होने लगते हैं। हम हॉर्न बजाते हैं, पसीना आ रहा होता है, एसी फुल कर लेते हैं, म्यूजिक बंद ऑफ कर देते हैं, चिल्ला रहे होते हैं, कुछ लोग लड़ने लग जाते हैं, और गाड़ियां निकल नहीं रही होती हैं, हमारा स्ट्रेस और बढ़ जाता है। तो आप देखिए, एक तरफ है कि हमें दूर से गाड़ी, रेड लाइट दिखी और हमने रोकी गाड़ी और फिर हम निकल गए, एक है हर रेड लाइट हमें बार बार रेड लाइट मिल रही है, हम परेशान हो रहे हैं, और एक है ट्रैफिक जैम। तो उसी तरह अलग अलग सिचुएशंस हमारे अंदर रिएक्शन क्रिएट करती हैं। दैट्स व्हाट इज इट। सो ये एक होलिस्टिक मॉडल है जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं। आपने बायोलॉजिकल मॉडल सुना होगा, आपने साइकोलॉजिकल मॉडल सुना होगा, आपने सोशल मॉडल सुना होगा, आपने बायो साइको सोशल मॉडल सुना होगा, लेकिन बहुत कम लोगों ने सुना होगा बायो साइको सोशियो स्पिरिचुअल मॉडल। तो हमें बायोलॉजिकली भी काम करना है अपने पे, हमें साइकोलॉजिकली भी काम करना है अपने पे, हमें सोशली भी काम करना है अपने पे, और इन सब को सब बांधता है वो है हमारा स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं हमारे माउंट आबू में है, डॉक्टर प्रोफेसर सतीश गुप्ता, बहुत बड़े कार्डियोलॉजिस्ट हैं दिल्ली से, अब माउंट आबू में प्रैक्टिस करते हैं, ब्रह्मा कुमारी के उस हॉस्पिटल में, ग्लोबल हॉस्पिटल में। तो वो कहते हैं जहां पे वेयर द मेडिसिन स्टॉप्स द स्पिरिचुअलिटी बिगिंस, जहां पे मेडिसिन काम नहीं कर पा रही, वहां पे आध्यात्मिकता के आपको संभालती है। तो इन सबके ही साथ, इन बायोसाइको सोशल के साथ एक आध्यात्मिकता है, तभी देखिए स्पिरिचुअल सबसे ऊपर डाला हुआ है हमने। इस अगर डायग्राम को देखें तो कैसे आध्यात्मिकता है इन सबको बांध के रखती है। तो होलिस्टिक मॉडल ऑफ स्ट्रेस व्यू स्ट्रेस एज अ कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन ऑफ वेरियस फैक्टर्स। बहुत सारे कारण हैं, हम बात करेंगे थोड़ी देर में। इट एम्फसाइजेस द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ दीज एस्पेक्ट्स एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस द इंडिविजुअल रिस्पॉन्स टू स्ट्रेसर। कैसे वो आपस में जुड़े हुए हैं। बहुत मुश्किल होता है कहना कि ये अलग कर दें, ये अलग कर दें, ये अलग कर दें, क्योंकि वो आपस में जुड़े पड़े हैं, आपस में उनका इतना ज्यादा कनेक्शन हुआ हुआ है ना, इस तरह। तो इस तरह, और वो एक दूसरे को इम्पैक्ट भी कर रहे हैं। बट यही हॉलिस्टिक मॉडल फोकस करता है कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस बाय एड्रेसिंग द होल पर्सन रेदर देन द आइसोलेटिंग स्पेसिफिक सिम्टम। कैसे हम संपूर्ण तरीके से उस इंसान को इन अ जेस्टाल्ट वे, कैसे हम उस इंसान के हर हर नजरिए को, हर पर्सपेक्टिव को हम एड्रेस कर सकते हैं। दैट्स व्हाट। तो ये हमारे को हेल्प करता है ना। तो हम हर एस्पेक्ट को, चाहे वो बायोलॉजिकल, चाहे वो साइकोलॉजिकल, चाहे सोशल, स्पिरिचुअल हो, जब हम हर एस्पेक्ट को, हर पर्सपेक्टिव को, हर नजरिए को, हर एरिया को एड्रेस करते हैं, तो इसका मतलब हमने सिर्फ एक पार्ट को एड्रेस नहीं किया, हमने कंप्लीटली ह्यूमन बीइंग को एड्रेस किया है। और यही हमारा होलिस्टिक पर्सपेक्टिव ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट है।
तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं धीरे धीरे एक एक करके हम। नाउ अगर हम बायोलॉजिकल कॉज की बात करें, बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारी बॉडी प्रोसेस हमारी बॉडी में होते हैं। इसमें एक सबसे कॉमन तो फाइट और फ्लाइट है। तो जब व्हेन द ब्रेन परसीव्स अ डेंजर, इट सिग्नल्स द बॉडी टू रिलीज स्ट्रेस हार्मोन्स। तो जैसे सामने स्ट्रेस आता है, हमारी बॉडी कहते हैं चलो, और हमारी बॉडी में से एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल रेज निकलने शुरू हो जाता है। और एक एड्रेनलिन और कॉर्टिसोल है जो डायरेक्ट जो इम्पैक्ट करता है हमारी हार्ट रेट पे, ब्लड प्रेशर और मसल टेंशन पे। तो हमारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारी मांसपेशियों में टेंशन बढ़ जाती है, और वो सारा एक रिएक्शन होता है, वो हमें सतर्क करता है। लेकिन ये आया और चला गया। लेकिन अगर वो लगातार चलता रहे, तो जो लगातार एड्रेनलिन कॉर्टिसोल रिलीज होता रहे, तो क्या होगा, हमारी हार्ट रेट बढ़ी रहेगी, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ा रहेगा, हमारी मांसपेशियों में तनाव और टेंशन बनी रहेगी। तो इसका मतलब थोड़ा बहुत कभी कुछ हुआ तो हमने मैनेज कर लिया, लेकिन जो क्रॉनिक एक्सेसिव स्ट्रेस है वो नुकसानदायक है हमारे लिए। और एक क्रॉनिक स्ट्रेस ही है जो 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 लगातार तनाव बना रहता है, वो ही हमारे को साइकोसोमैटिक कंडीशंस का कारण बन जाता है, जैसे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, क्रॉनिक पेन। ये सारे लोग कहने लग गए हैं कि हाँ, डायबिटीज में शुगर बढ़ती जरूर है, हार्ट डिजीज में हार्ट में प्रॉब्लम होती जरूर है, क्रॉनिक पेन में पेन होता जरूर है, लेकिन इन सब के पीछे स्ट्रेस इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजन जो इन सबको इंपैक्ट करता है। क्वेश्चन आंसर हम एंड में लेंगे, एक दो लोगों ने हाथ खड़ा किया है, वो हम एंड में ले लेंगे ताकि फ्लो खराब ना हो हमारा। दैट्स व्हाट। नाउ स्लीप डेप्रीवेशन बहुत कॉमन फैक्टर है। तो अगर हमारी रात की नींद अच्छी नहीं है, तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल बढ़ जाता है और हमारा इमोशन रेगुलेशन हो जाता है। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें करता है। इसलिए अच्छी नींद होना बहुत जरूरी है। अगर हमारी कम से कम 6 घंटे की नींद है, 10 से 4 बजे तक की, 10 PM to 4 AM, कम से कम हमें 6 घंटे की अच्छी नींद आ रही है, तो हमारे बॉडी के सारे सिस्टम्स को इंक्लूडिंग मेलाटोनिन को वो रिस्टोर कर देती है, ताकि हमारी बॉडी अगले दिन के लिए तैयार हो जाए, ताकि हम अगले दिन फिर से सिचुएशंस को हैंडल कर सकें। तो इसीलिए, लेकिन आज की सोसाइटी विद टेक्नोलॉजी सो मच इन, with so much of technology, so much of screen use, so much of mobile use, आजकल हम अपनी स्लीप के साथ खेलने लग गए हैं। हम 10-11 बजे की बजाय हम 12, 1, 2, 3 बजे सोते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी स्लीप भी ऑल्टर्ड हो रही है, और स्लीप पैटर्न ऑल्टर हो रहे हैं, और जो हमारी सर्केडियन रिदम होते हैं वो भी ऑल्टर हो रही है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, हमें पता है वैसे ही आजकल सॉइल की क्वालिटी काफी कम हो गई है। जो सॉइल की क्वालिटी पहले होती थी, जो फूड की न्यूट्रिशनल क्वालिटी होती थी, वैसे ही वो डाउन हो गई है ओवर द ईयर्स नाउ। तो और वैसे ही हम फिर अगर मील स्किप कर रहे हैं, हमारा न्यूट्रिशन पुअर है, हमारा विटामिन डी, विटामिन B12, हमारा आयरन अगर ये पुअर है, मैग्नीशियम, कैल्शियम और ट्रेस मिनरल्स, तो डेफिनेटली वो हमें इम्पैक्ट करेगा। अगर हम टू मच ऑफ कैफीन और शुगर लेते हैं, इट कैन डिस्टर्ब द ब्लड शुगर रेगुलेशन, मेकिंग द बॉडी मोर रिएक्टिव टू स्ट्रेस। तो ये सारी न्यूट्रिशनल एस्पेक्ट भी हैं जो कंट्रीब्यूट करता है हमें इन सबको मैनेज करने में। और फिर अगर हम सब्सटेंस लेते हैं, ड्रग्स लेते हैं, अल्कोहल लाइक सब्सटेंस लाइक अल्कोहल, निकोटीन या स्टिमुलेंट्स लेते हैं, या बाकी सब ड्रग्स लेते हैं, तो वो भी हमें इम्पैक्ट करता है। और इन सब के साथ में हार्मोनल चेंजेस, जैसे कुछ मेंस्ट्रुअल साइकिल, कुछ फीमेल्स को, कुछ गर्ल्स को मेंस्ट्रुअल साइकिल्स के वक्त, या कुछ को थायराइड डिसऑर्डर से, प्रेगनेंसी में, या मीनोपॉज के वजह से जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो भी इम्पैक्ट करते हैं। तो बहुत सारे बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो हमें इम्पैक्ट करते हैं इस सारे कारण में, जो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। सो ये चीज है। अगर इसके बाद हम देखें साइकोलॉजिकल कॉजेस, तो साइकोलॉजिकल इश्यूज की वजह से स्ट्रेस आ रहा है, लेकिन हमारे अगर मेंटल इमोशनल प्रोसेसेस इन प्लेस नहीं है, तो क्या होगा, वो राई का पहाड़ बन जाते हैं, वो मैग्नीफाई हो जाते हैं। तो एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है मैग्निफिकेशन या ओवर जनरलाइजेशन। तो हम राई छोटी छोटी बातों का हमको बड़ा बना देते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन जो है, तो कुछ हुआ, हमने कहा अरे नहीं नहीं नहीं, शायद मेरी वजह से हुआ होगा, या आई एम एट फॉल्ट, या शायद मेरी वजह से नुकसान हुआ होगा, आई एम नॉट अ गुड पर्सन, आई एम नॉट गुड इनफ। तो ये जो थॉट्स आए, उसको हम उसके अंदर जो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस क्रिएट करते हैं, वो हमारे 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 स्ट्रेस को
और प्रॉब्लम में ले आता है, तो वो बन जाता है डिस्ट्रेस। अगर हम कहते हैं अरे नहीं हो गया कोई बात नहीं, अगली बार हम ध्यान रखेंगे, चलो अगली बार कोशिश करेंगे, चलो किसी से बात करते हैं, कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालते हैं, तो क्या हुआ, थॉट तो आया लेकिन हमने उसको संभाल लिया। दैट्स व्हाट। सो ये देखिए कैसे हमारे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस हैं जो हमें इन सब के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। परफेक्शनिज्म, सेल्फ क्रिटिसिज्म, हम बहुत परफेक्टली हर चीज करना चाहते हैं, अगर वो परफेक्टली नहीं हो पाती तो हम बड़े परेशान हो जाते हैं। अरे नहीं नहीं यार, ऐसे नहीं हुआ तो ये सही नहीं है, मतलब मैं गलत हूं, आई एम नॉट गुड। तो कहीं ना कहीं परफेक्शनिज्म एंड योर enhance increased self-criticism comes in the way. Chronic worry and ruminations. So constantly worrying about things. Poor coping strategies. पुअर कोपिंग स्ट्रैटेजी जो मैं भी कह रहा था, कोई सिचुएशन आई हमने उसको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं करा, कोई सिचुएशन आई हमने उसको रिजॉल्व नहीं कर पाए, कोई सिचुएशन आई हम उसको प्रॉपर्ली समझ नहीं पाए, तो उसमें क्या होता है, वो सारा इज 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 एबल टू is able to is able to what happens is not is able to, some people are able to manage and some are not able to manage. So when they are not able to manage, तो वो अगेन प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसीलिए हमारी लाइफ स्किल्स और कोपिंग स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है होना। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ट्रॉमा। ट्रॉमा हुआ, लेकिन कुछ कुछ लॉस हुआ हमारी लाइफ में, कुछ ग्रीफ हुआ हमारी लाइफ में, कुछ हमारी लाइफ में कोई हादसा हो गया, कुछ बात हो गई, चाहे छोटा हादसा हो या बड़ा हादसा हो, छोटा ट्रॉमा हो या बड़ा ट्रॉमा हो, जिसको लोग कहते हैं स्मॉल टी और बिग टी, अगर वो रिजॉल्व नहीं हुआ, जो मैं बात कर रहा था अडेप्टिव मैल अडेप्टिव वाली बात, तो अगर हमने अडेप्टिवली इसको हैंडल कर लिया, हमें हमें रोज ना कुछ खबर मिलती है ट्रॉमा के बारे में, अगर वो हमने उसको हैंडल कर लिया तो क्या होगा, तो हम कहेंगे यस, वो हमें आगे के लिए और स्ट्रांग बनाएगा। लेकिन हम उसे हैंडल नहीं कर पाया है तो हमें परेशान करता रहेगा, हमें गिल्ट में लेकर चला जाएगा, हमें क्रिटिसिज्म में लेकर जाएगा, हमें ब्लेम गेम में लेकर चला जाएगा, हम उससे और परेशान हो जाएंगे और हमारे स्ट्रेस का कारण बन जाएगा। तो आप देखिए किस तरह हमारा जो ब्रेन है, हमारा माइंड के थॉट प्रोसेस है, कैसे वो चीजों को संभालता है। तो अगर हम कॉग्निटिवली इसको संभाल लें, परफेक्शनिज्म के साथ साथ क्रिटिसाइज न करते हुए उसको संभाल लें, वरीज के साथ रूमिनेशन के साथ हम उसको हैंडल कर लें, हमारी कोपिंग स्किल्स इन प्लेस हों, और हम ट्रॉमा कुछ हुआ है तो उसको हम प्रॉपर्ली रिजॉल्व करके अडेप्टिवली उसको सेटल कर दें, तो हम बहुत चीज़ों को संभाल सकते हैं। तो अब देखते हैं कुछ सोशल कारण भी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सोशल कारण में, भरा पड़ा है। द प्रेशर एंड प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप्स रोल सोशल एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट टू फीलिंग ओवरवेल्म्ड डिस्ट्रेस। हर जगह भरा पड़ा है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो, चाहे वर्क डिमांड हो, रोल ओवरलोड हो, और टेक्नोलॉजी आने के बाद तो शायद मेरे को लगता है वर्किंग आवर्स अब अनलिमिटेड हो गए हैं। अब कभी भी कोई भी कुछ भी आपसे काम मांग सकता है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो गए हैं, स्ट्रेन्स बढ़ रहे हैं, लाइफ में चेंजेस बहुत सारे हो जाते हैं, डाइवोर्स, रिटायरमेंट, लॉस ऑफ लव्ड वंस, सोशल कल्चर एक्सपेक्टेशंस हैं, तो ये मल्टीपल चैलेंजेस हैं जो एज ए सोशल हैं, इससे हम भाग नहीं सकते। लेकिन अगर हमने इनको प्रॉपर्ली हैंडल नहीं किया तो यही हमारे स्ट्रेस का कारण बन जाता है। हम टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, हम पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, लेकिन अगर हमारे को साथ में चैलेंजेस आ रहे हैं तो वही हमारा, जिसमें हम इंजॉय करते थे हमारा कॉलेज, वही हमारे लिए स्ट्रेसफुल बन जाता है। वही स्टाफ रूम जहाँ पे हम बहुत खुश थे, वही हमारे लिए स्ट्रेसफुल बन जाता है। तो देखिए किस तरह एक एक सिचुएशन वही है, लेकिन वो सिचुएशन हमारे अंदर गुड और बैड लेके आ जाती है। दैट्स व्हाट इज इट। नाउ कमिंग टू स्पिरिचुअल पार्ट। सो कभी कभी जिंदगी में हम मीनिंग खो देते हैं, जिसको लोग कहते हैं वैराग्य आ जाता है, लॉस ऑफ मीनिंग एंड पर्पस। क्या चल रहा है, क्यों हो रहा है, क्या रखा है। तो स्पेशली इन व्हेन यू स्टार्ट कमिंग इन 40s 50s 60s, हमें लगता है क्या हो रहा है, ये सब बस यही जिंदगी है। तो कहीं ना कहीं वो एक मीनिंग खो देते हैं लाइफ में, वो जील खत्म हो जाती है, वो वैराग्य आ जाता है। हमारे को कॉन्फ्लिक्ट लगता है अपने वैल्यूज और एक्शंस में, हमें लगता है हम ये कर तो रहे हैं, लेकिन हमारी वैल्यू तो कुछ और कहती हैं, हमें वैल्यूज कुछ और सिखाई गई थी लेकिन हम कुछ कर कुछ और रहे हैं। तो एक अंदर एक कश्मकश चलने लग जाती है, और उस कश्मकश में हम ट्रैप हो जाते हैं, फंस जाते हैं, जूझ जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता। हमारा दिल कुछ और कहता है और मन कुछ और कहता है। दिल कहता है मत कर, मन कहता है कर ले। तो कहीं ना कहीं एक युद्ध शुरू हो जाता है, हमारे एक क्राइसिस ऑफ फेथ, एग्जिस्टेंशियल डाउट्स आने लग जाते हैं कि क्या क्या एक विश्वास किया जाए, क्या इस सब का मतलब क्या है, क्यों एग्जिस्ट कर रही है दुनिया, क्यों एग्जिस्ट कर रही सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं एक डिस्कनेक्शन हो जाता है। हम कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कम्युनिटी फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें खुशी नहीं देता।
और हमारे अंदर गिल्ट, रिग्रेट और मॉरल कंसर्न अनरिजॉल्व रहते हैं। तो ये सारे अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं जो हमारे को एक स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। तो हमने सुना कि स्ट्रेस होता क्या है अभी तक, पहला पार्ट। और सेकंड पार्ट में हमने सुना अभी तक कि व्हाट आर द बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव विच कैन लीड टू स्ट्रेस। देखा जाए तो स्ट्रेस धुआं की तरह है, आप फूंक मार दो धुआं उड़ जाएगा। आप उस फूंक के अंदर, उसको धुएं के अंदर खो जाओ तो आपके चारों तरफ वो धुआं फैल जाता है, और आप उस धुएं की जो जो भी उसकी स्मेल होती है वो चारों ओर आपके हो जाती है, और आप कहीं ना कहीं खो जाते हो धुएं के अंदर। तो ये है स्ट्रेस। आप चाहो तो उसको हैंडल कर सकते हो, आप चाहो तो उसको सेकंड्स में संभाल सकते हो, नहीं तो वही स्ट्रेस आपके ऊपर इतना हावी हो जाता है कि आप परेशान हो जाते हो। आप अगर दोनों डायग्राम्स को देखो स्ट्रेस मैनेजमेंट की, है जो डायग्राम आपके सामने है, एक डायग्राम में तार देखो किस तरह जूझ रहा है, ये हमारा ब्रेन का सर्किट है, और एक दूसरे राइट वाली डायग्राम देखो कैसे वो प्रॉपरली लाइंड अप है। दैट्स व्हाट। इसी तरह हमने अपने ब्रेन को ट्रेन करना है, इसी तरह हमने ब्रेन को समझाना है, इसी तरह हमने ब्रेन की फंक्शनिंग पे कोऑर्डिनेशन लानी है, जिसको बोलते हैं रेगुलेशन, जिसको बोलते हैं। तो सिचुएशंस तो आती रहेंगी, बदलती रहेंगी, लेकिन कैसे हम उन सिचुएशंस को हैंडल करते हैं वही सारी कला है स्ट्रेस मैनेजमेंट की। उसी तरह हम लेंगे, जैसे हमने बात की थी बायोसाइको सोशल एंड स्पिरिचुअल, उसी तरह हम धीरे धीरे एक एक स्टेप को लेंगे बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल में हम बात करेंगे लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस, पहली चीज। तो बायोलॉजिकल इंटरवेंशन में पहला पार्ट है लाइफस्टाइल फैक्टर्स, एंड वेरी वेल सेड, एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी इज वन ऑफ द कॉर्नरस्टोन, द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर लाइफ इज एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी। और जब एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी योगा करते हैं, अभी हमारा वर्ल्ड योगा दिवस भी गया 21 जून को, है ना, हमारी सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने बहुत इस पे एम्फसाइज करा गया, बहुत देशों में इसके बारे में तारीफ करी गई। क्यों? क्योंकि एक्सरसाइज और योगा फिजिकल एक्टिविटी हमारी बॉडी को संयम में लाती है, हमारी बॉडी में अच्छे केमिकल्स रिलीज करती है, चाहे वो सेरोटोनिन, डोपामीन हो, हमारी नींद की क्वालिटी को अच्छा करती है, चाहे वो मेलाटोनिन हो, हमारे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को रेगुलेट करती है, सिंपैथेटिक को बढ़ने नहीं देती और पैरासिम्पैथेटिक को इन प्लेस रखती है। तो एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी हमारे अंदर अच्छे एंडोर्फिन रिलीज करती है। तो इसीलिए एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे बॉडी के बैलेंस के लिए, हमारी अच्छी स्लीप के लिए, अच्छे थॉट्स के लिए, अच्छे ख्यालों के लिए। इसीलिए एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैलेंस न्यूट्रिशन, जैसे हमने बताया कि वैसे ही आजकल जो खानों की क्वालिटी है और जो हमारी मिट्टी है उन सब की क्वालिटी कम होती जा रही है, तो हमें एक अच्छा न्यूट्रिशन रखना बहुत ज़रूरी है। और इन सब के साथ एक जो बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो बहुत बढ़ गई है, जिसको लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं, कोई फास्ट फूड कहता है, कोई प्रोसेस फूड कहता है, अब एक नया नाम आ गया माइक्रो प्रोसेस फूड आ गया है, ये अलग अलग नाम आ गए हैं। तो इन सब फूडों के साथ, चाहे वो जंक फूड हो, प्रोसेस फूड हो, पैकेज फूड हो, प्रिजर्वेटिव फूड हो, माइक्रो प्रोसेस फूड हो, इन सब के साथ हमें, इन सब से हमें बच के रखना है। अभी अभी कुछ टाइम पहले फिक्की ने भी इसके बारे में गाइडलाइंस निकाली थी, चैम्बर्स ने, कि कैसे हम इन सब से बच सकते हैं, और सरकार भी इसके बारे में बहुत स्ट्रांगली इसके बारे में प्रमोट करती है। अभी अभी आप देखें कुछ टाइम पहले बार बार ऐड आ रहा था कि सरकार की तरफ से कैसे हमें खाने में हमें अपना तेल कम करना चाहिए, कैसे हमें ऑयल कम करना चाहिए, जो हमें हेल्प करेगा। तो उसी तरह एक बैलेंस न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, नट्स हो, सीड्स हो, ये सब इंपॉर्टेंट हो, एडिक्वेट वाटर हो, और साथ में हम ध्यान रखें कि हम उसे सही टाइम पे खा रहे हैं। ये नहीं कि हम 11 बजे 12 बजे खाना खा रहे हैं, जो सही टाइम पे खाना खाना ही बहुत जरूरी है। लोग कहते हैं कि 8 से 8 के बीच में खाना जरूर खा लेना चाहिए, 8 AM to 8 PM के बीच में जो सबसे बेस्ट टाइम है, या जो एक पुरानी पुरानी मानता है कि आफ्टर सनराइज एंड बिफोर सनसेट is the best time to eat food. So that is what is it. So how can we have a balanced nutrition and at the right time? Adequate sleep, इसका तो कोई तोड़ नहीं है। और जब भी हम नींद से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, नींद से खेलेंगे, तो तो नेचर हमारे साथ भी खेलेगा। तो इसीलिए हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम स्लीप दें। कई लोग 6 घंटे से बहुत बढ़िया हो जाते हैं, कई लोग 8 घंटे से होते हैं, कई लोगों को 9 घंटे की नींद चाहिए होती है। तो 6 से 9 घंटे का हमें हम स्लीप पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारी बॉडी प्रॉपरली रिस्टोर कर सके,
हमें चाहे वो मेलेटोनिन हो, चाहे वो कॉर्टिसोल हो, और 10 to 2 का टाइम सबसे खतरनाक टाइम होता है, जहाँ पे हमारी बॉडी के लिए खतरनाक होता है। इसीलिए 10 to 4 इज द बेस्ट टाइम टू स्लीप। बहुत लोग जो मानते होंगे ब्रह्म मुहूर्त एक वक्त होता है, सुबह 3 बजे के बाद से ब्रह्म मुहूर्त शुरू होता है, 3 से 5, 3 से 6, जो अलग अलग तरीके से मानते हैं, और वही वक्त होता है सुबह उठ के हमें अपने पे काम करना चाहिए। उसी वक्त हमें अपने चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, लिखना चाहिए, आध्यात्मिकता का अनुभव करना चाहिए। तो वही है। तो इसीलिए ये तीनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, डाइट, एक्सरसाइज एंड स्लीप। ये हमारे बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर्स हैं, स्तंभ हैं हमारी जिंदगी को खड़ा रखने के लिए। इसके साथ में आता है रिलैक्सेशन टेक्निक्स, और अलग अलग टेक्निक्स हैं, और आप कोई सी भी टेक्निक फॉलो कर सकते हो। ये नहीं कि आपको एक टेक्निक फॉलो करनी है, मल्टीपल टेक्निक्स आर देयर। और आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो लोग अलग अलग ऐप्स यूज करते हैं, और एक बहुत कॉमन ऐप है जो बहुत चला कोविड में, जिसका नाम है हेड स्पेस, जो बहुत चला बहुत चला बहुत चला। उसके अलावा बहुत सारे ऐप्स हैं, माइंड करके है, बहुत से ऐप्स हैं जिन्होंने बहुत करा हेल्प। 10 मिनट की रिलैक्सेशन एक्सरसाइज है, 15 मिनट की, 5 मिनट की। तो जितना हमें कम से कम दे दिया उन्होंने कि आप करो तो कुछ तो करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, 15 मिनट करो, कुछ तो करो, ताकि आपको फायदा हो। तो टेक्नोलॉजी ने हमारे हिसाब से करा, लेकिन टेक्नोलॉजी ने हम पे हमारे को हर चीज देने की कोशिश करी है। और खासकर अब तो चैट जीपीटी और एआई का जमाना है, जो कहते हैं हर चीज दे सकती है। अब तो देखते हैं क्या होता है। तो ये रिलैक्सेशन हमें बहुत जरूरी है। साथ में डीप ब्रीदिंग, जो लोग योगा करते हैं वो जानते हैं डीप ब्रीदिंग कितना इंपॉर्टेंट है, प्राणायाम कितने इंपॉर्टेंट है। तो योगा में कोई एक प्राणायाम होता है और एक आसन होता है। तो प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है। लोगों ने ये कोविड में भी देखा कि जिन लोगों ने प्राणायाम किया, कैसे उनको हेल्प की। और 10 मिनट बहुत है प्राणायाम करने में। अगर आप 10 मिनट का टाइम भी निकालने में, जानता हूँ सब लोग बहुत व्यस्त हैं, सब लोग बहुत बिजी रहते हैं, अगर 10 से 15 मिनट भी आप प्राणायाम रोज कर लें, चाहे सिंपल ब्रीदिंग कर लें, या कपालभाति कर लें, या अलोम विलोम कर लें, या कुंभक कर लें, जो आपकी सुविधा हो, या ओम का उच्चारण कर लें, चैंटिंग कर लें, जो आप कर सकते हैं वो आपको सुविधा देगा। सुबह कर लें, शाम को कर लें, लेकिन सुबह का सबसे अच्छा टाइम तो सुबह का होता है। सुबह 6 बजे उठ के करना, 7 बजे करना, ये ब्रह्म मुहूर्त के पास वक्त करना। लेकिन जब आपको मौका मिले जरूर करें। तो वो डीप ब्रीदिंग आपको हेल्प करेगी, आपके अंदर ऑक्सीजनेशन बढ़ाएगी। दैट्स व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट। गाइडेड इमेजरी एक बड़ी काम की टेक्निक है, जो सिंपल टेक्निक है, जो आप कहीं भी कर सकते हैं, आप कभी भी कर सकते हैं, लेक्चर लेते हुए भी कर सकते हैं, स्टाफ रूम में बैठे बैठे भी कर सकते हैं, आप किसी के साथ बैठे तब भी कर सकते हैं, आप कॉलेज में कर सकते हैं, घर में कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। तो गाइडेड इमेजरी एक टेक्निक है जो बहुत अच्छी करते हैं, जिसको लोग विजुअल इमेजरी भी बोलते हैं, इमेजिनेशन भी बोलते हैं, विजुअलाइजेशन भी बोलते हैं, अलग अलग नाम है, अलग लोगों ने अलग नाम दिए हैं। तो आप विजुअलाइज करते हैं एक ऐसी चीज, जैसे आपने अपनी आंख बंद करी, आंख बंद करके आपने इमेजिन करा कि आप समुद्र के तट पे हैं या सी शोर पे हैं, और वहां पे आप धीरे धीरे मिट्टी पे चल रहे हैं, और आपके पैर बिना चप्पल के आप उस पर चलते जा रहे हैं, और धीरे धीरे आपके पैर पानी की तरफ जा रहे हैं, और धीरे धीरे पानी में थोड़ा थोड़ा जाने लगे हैं, और उसके बाद पानी धीरे धीरे आपको टच कर रहा है, और उस पानी की ठंडक से और ऊपर ठंडी हवा चल रही है, पंछी ऊपर पर धीरे धीरे हल्का हल्का चल रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको हल्का हल्का महसूस हो रहा है, और सामने सनराइज हो रहा है, आप सनराइज को देख रहे हैं, उसके कलर्स को देखते हुए, उस हवा का महसूस करते हुए, उस पानी की ठंडक को महसूस करते हुए, आप चारों तरफ रिलैक्स अपने पूरे शरीर को शांत महसूस कर रहे हैं, महसूस करते हुए आप उसे आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सिंपल सी गाइडेड इमेजरी है। देखिए हमने अभी 1 से 1 मिनट में करी है। तो आप इस तरह इमेजिन कर सकते हैं, और ये नहीं कि आपको हमेशा समुद्र का तट ही सोचना है, आपको कोई भी चीज हो सकती है, कोई फॉरेस्ट हो सकता है, कोई ऐसी मौका हो सकता है जो आपको इंजॉय करा हो आपने, कोई ऐसा मोमेंट हो सकता है परिवार के साथ जो आपको अच्छा लगा हो, कोई आपका लंच टाइम हो सकता है, कोई फेस्टिवल टाइम हो सकता है लोगों के साथ आपने करा हो, कोई ट्रैकिंग हो सकती है आपने ट्रैकिंग करी हो, अगर आप स्पोर्ट्स मैन है तो आपने साइकिलिंग करी हो या स्विमिंग करी हो। तो कोई भी चीज हो सकती है जो आपको रिलैक्स करती हो। तो वो क्या करता है, वो आपकी वो चीज को तोड़ देता है। अगर आप में तनाव है, आपकी मांसपेशियां खिंच रही हैं, तो वो क्या एकदम से वो इमेज विजुअलाइजेशन उसको तोड़ देता है। तो इस तरह ये लाइफस्टाइल फैक्टर्स है, रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत सारी हैं। एक प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक्स है, ये भी आप सीख सकते हैं नेट पे जाके, बहुत काम की चीज है, जो हेल्प करती है हमारे को रिलैक्स करने में। और ये इसमें आप अलग अलग ऊपर से लेके हेड से लेके नीचे टो तक
आप अपनी पूरी बॉडी को धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप आप उसको रिलैक्स करते हैं। पहले अपनी हेड को, फोरहेड की मसल्स को, फिर अपनी चीक की मसल्स को, फिर गले की मसल्स को, फिर चेस्ट की मसल्स को, पेट की मसल्स को, फिर लेग की मसल्स को, और फिर अपने फुट को, अपने टोस को, सबको रिलैक्स करते हैं। और उसको करने के बाद आप पूरी बॉडी को रिलैक्स फील महसूस करते हैं। वो आप लेट के करते हैं यूजली, और आंखें बंद करके, ताकि आप एक उसमें चले जाएं, ऑलमोस्ट जो शवासन की तरह है। आप जो लोग शवासन जानते हैं और शवासन करना जानते हैं, वो बेटर कनेक्ट कर सकते हैं। तो शवासन एक अच्छा है जिसमें पूरा शरीर आपका शांत हो जाता है और बहुत बड़ा नींद में भी चले जाते हो। तो ये चीज़ है। तो ये सारी अलग अलग रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं। एक बड़ी काम की टेक्निक और है जिसको हम बोलते हैं, जिसको जिसमें हम इमेजिन कराते हैं कि वो आप बैठे हुए हो और आप ऊपर से इमेजिन करते हो कि ऊपर से सन की लाइट्स आपके ऊपर आ रही हैं, और धीरे धीरे वो सन की लाइट आपकी पूरी बॉडी में फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, फैलती जा रही है, और पूरी बॉडी के अंदर वाइट लाइट फैल रही है, और धीरे धीरे आपकी पूरी लाइट आपकी बॉडी पूरी रिलैक्स होती जा रही है। और बॉडी में जहाँ जहाँ पेन है वहाँ पे वो जाके वो लाइट आपके उस बॉडी पार्ट को हील कर रही है, और आपकी पूरी बॉडी हील हो रही है और रिलैक्स हो रही है। तो ये अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो मैंने आपको 3-4 टेक्निक्स बताई हैं। इसके अलावा इतनी सारी टेक्निक्स हैं, अगर आप देखेंगे। अगर इसके बावजूद भी हमें लगता है कि हमारे स्ट्रेस हमारे पे हावी होता जा रहा है, फिर तो कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट्स भी हैं जहाँ पे हम सेरोटोनिन और डोपामिन पे खेलते हैं और उस पे काम किया जाता है। तो उसके लिए आपको मेडिकल प्रोफेशनल के पास जाना पड़ता है जो सेरोटोनिन डोपामिन के बैलेंस पे काम करते हैं, जिसको दवाइयाँ बोलते हैं। और उन दवाइयों के थ्रू आपके सेरोटोनिन डोपामिन को ऑल्टर किया जाता है, ताकि एक रेगुलेशन बन सके, वो रेगुलेट हो सके, वो मॉड्यूलेट होके उसमें फिर आप आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे अलग अलग बायोलॉजिकल इंटरवेंशंस हैं। साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, बहुत सारी साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट्स हैं। कुछ नए नए ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं। करेक्ट, इमोशनल रेगुलेशन स्किल्स, जिसमें एक टेक्निक है EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। बहुत नाम है कोविड में और कोविड के बाद बहुत EFT ने बहुत नाम कमाया। तो इमोशनल रेगुलेशन स्किल, इसमें आपको सीखने की जरूरत है। एक बार आप सीख लें तो आप, ऐसा नहीं कि आपको प्रोफेशनल होना है, आप खुद ही अपने पे टैपिंग करके अपने आप को, अपने इमोशंस को आप उनको हेल्प कर सकते हैं। अपने आप को, जो चीज़ें आपके अंदर एक गुत्थी की तरह बन गई हैं, उनको रिलीज कर सकते हैं और अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं। तो इमोशनल फ्रीडम टेक्निक एक है। बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसके लिए बहुत बार आपको हेल्प लेनी पड़ती है, क्योंकि बहुत बार हम इतना निराशावादी हो जाते हैं कि हम खुद ही अपने को हमारा सेल्फ एस्टीम, कॉन्फिडेंस नीचे हो जाता है। तो उस वक्त हमें हेल्प चाहिए होती है। तो हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो हमको सुन सके, हमको समझ सके और फिर हमें समझा सके। तो सुनना, समझना और समझाना, तो वो एक इंसान चाहिए। वो कोई भी हो सकता है। तो वो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। हमारे आत्मविश्वास के जहाँ छक्के चौके उड़ जाते हैं, तो वो वापस कहता है कि हाँ, आई कैन, आई एम, आई विल। सो वो कॉन्फिडेंस वापस रास्ते पे आता है। तो उस तरह करता है। फिर डेवलपिंग अ ग्रोथ माइंडसेट, कि हाँ, कि मैं आगे कर सकता हूँ। और यहाँ पे काम करती है एफर्मेशंस। एफर्मेशंस हमें हमें एक रास्ता दिखाती है, जिसको हम हिंदी में सोमान भी बोलते हैं। सोमान के थ्रू, एफर्मेशंस के थ्रू हम अपने माइंड के अंदर बहुत सारी पॉजिटिविटी को लाते हैं। एक बहुत सिंपल टेक्निक है जो आप लोग कर सकते हैं, जो करते होंगे तो बहुत बढ़िया है, आई एम श्योर। नहीं तो सुबह उठते ही जैसे आप बैठ के बाद अपने पैर नीचे रखते हैं जमीन पे, तो पैर जमीन पे रखने से पहले ही अपने अंदर 3 सोमान बोलें। या जब आप नहा धो लें, नहाने के बाद जो शीशा देखते होंगे, कंघी करने के लिए, कोम करने के लिए, कोई भी करता होगा, आई एम श्योर, या अपने हाथ से करते होंगे, या कंघे से करते होंगे, या ब्रश से करते होंगे, या हेयर कॉम से करते होंगे। उस वक्त करने के बाद अपने अंदर 3 एफर्मेशन जरूर बोलिए, विच विल रियली हेल्प यू। तो ये उस तरह एफर्मेशन के थ्रू, और आप कोई भी एफर्मेशन ले सकते हैं, लाइक आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम अ पीसफुल सोल, आई एम अ कॉन्फिडेंट सोल, वॉट एवर विल हैपन गुड विद मी। ऐसे कोई भी आप आई एम अ सक्सेसफुल सोल, तो कोई भी एफर्मेशन हैं, तो वो एफर्मेशन आपके अंदर सुबह सुबह ही आपके अंदर पॉजिटिविटी भर देगी और पूरा दिन आपका अच्छा निकलेगा। तो ये ग्रोथ माइंडसेट है जो आपके अंदर क्रिएट करनी है। तो EFT हो गया, सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो गई, एफर्मेशंस के ग्रोथ माइंडसेट क्रिएट करना हुआ। और फिर माइंडफुलनेस, मेडिटेशन और एक्सेप्टेंस बेस्ड टेक्निक्स हैं। अलग अलग टेक्निक्स हैं जिसके अंदर हम माइंड को, हमको माइंड, इनके थ्रू हम कोशिश की जाती है कि आपके अंदर जो जो ब्रेन में जो बीटा एक्टिविटी चल रही है, जो ब्रेन के अंदर बीटा एक्टिविटी चल रही है, तो वो ब्रेन के अंदर बीटा एक्टिविटी जो चल रही है, ब्रेन के अंदर बीटा एक्टिविटी को हम एल्फा
और थीटा में लेके आ सकें। तो हमारे ब्रेन में जब बीटा एक्टिविटी चलती है, गामा एक्टिविटी चलती है, हमारे ब्रेन के अंदर उथल पुथल बढ़ जाती है। ऐसे देखिए, ऐसे। तो हमें धीरे धीरे उसको अल्फा पे लेके आना है और थीटा पे लेके आना है। जब आप थीटा में लेके आते हो तो आप एक मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हो। दैट्स व्हाट आजकल अक्सर लोगों के अंदर गामा और बीटा और गामा ही चलता रहता है। इतनी स्पीड से संकल्प पे थॉट्स आते रहते हैं, एक के बाद एक फायरिंग होती रहती है। तो कभी बीटा गामा, बीटा गामा, बीटा गामा चलता रहता है। अगर हम अल्फा पे लेके आ जाएं तो हम ध्यान फोकस बेटर कर सकते हैं, और थीटा पे लेके आ जाएं तो हमारे अंदर एक मेडिटेटिव स्टेट बन जाती है। फिर रिलैक्सेशन इमेजरी जो हमने बात करी थी थोड़ी देर पहले, इमेजरी वाली बात करी थी, वो भी हमें हेल्प करती है। और फिर टेक्निक्स हैं, सीबीटी, ईएमडीआर, बहुत डीबीटी, बहुत टेक्निक्स हैं जी, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जहाँ पे हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस पे काम करते हैं। जैसे हमने बात की थी, कॉग्निटिव थॉट है जैसे आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम हेल्पलेस, नथिंग विल हैपन गुड विद मी। तो उस कॉग्निटिव पार्ट को लेके हम उस पर काम करने की कोशिश करते हैं, और उन पे काम करके हम बिहेवियर को बदलने की कोशिश करते हैं। वो होती है सीबीटी। क्लियर, ये हो गया। फिर हो गई ईएमडीआर, बहुत अच्छी टेक्निक है ईएमडीआर, आई मूवमेंट डिसेंसिटाइजेशन रीप्रोसेसिंग टेक्निक, ईएमडीआर। एक थेरेपी उसके लिए निकाली गई थी, और आज से ऑलमोस्ट 35 साल पहले फ्रांसिन शपीरो ने 1989 में इस थेरेपी को लेकर आई थी, जिसको लोग ट्रॉमा थेरेपी भी बोलते हैं। और आजकल हम इतने ट्रॉमेटाइज वर्ल्ड में रहते हैं, तो उन्होंने करा कि कैसे हम, जो हमारे पास ट्रॉमा आते हैं और जो मेल अडेप्टिव प्रोसेसिंग हो जाती है हमारे ब्रेन की, कैसे उस मेल अडेप्टिव को अडेप्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे हम उस ट्रॉमेटाइज मेमोरीज को प्रोसेस करके वी कैन कन्वर्ट देम इनटू अडेप्टिव रेजोल्यूशन। दैट्स व्हाट, क्योंकि वो मेमोरी को, वो तो घटना तो हो चुकी है, लेकिन वो घटना में परेशान करती है। वो बार बार परेशान करके कैसे वो आई मूवमेंट के थ्रू हम उसे बदल सकते हैं। तो इसको बोलते हैं ईएमडीआर। बहुत पावरफुल टेक्निक है, मैं काफ़ी साल, उस 15-16 साल से यूज़ कर रहा हूँ अपनी प्रैक्टिस में। मैं 5-5, 6-6 साल के बच्चों के साथ भी यूज़ करता हूँ। मैंने काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे, काफ़ी प्रेजेंटेशन भी किए इसके बारे में। तो बहुत है, तो ये अलग अलग टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो जिसको आप काउंसलिंग या टॉक थेरेपी जिसे बोलते हैं, बिल्डिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो सुने समझे और समझाए, ईएफटी टेक्निक्स हो गई, एफर्मेशंस हो गए, माइंडफुलनेस मेडिटेशन, एक्सेप्टेंस बेस्ड प्रैक्टिस हो गई, रिलैक्सेशन इमेजरी, सीबीटी, डीबीटी एंड ईएमडीआर। तो इसके अलावा भी बहुत सारी और थेरेपीज हैं, बट मोस्टली दीज आर द मोस्ट कॉमन थेरेपीज विच आई यूज इन द प्रैक्टिस इन टूडेज वर्ल्ड। फिर सोशल इंटरवेंशन बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत काम की चीज है। एनहांसिंग सपोर्टिव रिलेशनशिप्स, कैसे हम उस रिश्तों में जान डाल के रखें, कैसे हम रिश्तों को बना के रखें। रिश्तों को बिगाड़ने में सिर्फ सेकंड लगता है, बनाने में इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। दुनिया बात करती है इन्वेस्टमेंट की, कोई बैंक की इन्वेस्टमेंट की, कोई प्रॉपर्टी की, कोई म्यूचुअल फंड की, कोई गोल्ड की, कोई सिल्वर की, कोई बिटकॉइन की, दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट की बात होती है। बट रिश्तों की इन्वेस्टमेंट से बड़ी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। हर चीज चली जाती है, लेकिन ये रिश्ते हैं, वही आपको संभाल के रखते हैं एंड तक। सो इसीलिए हाउ कैन वी हैव मोर सपोर्टिव रिलेशनशिप, और यही है हमारी, जो हम जानते हैं कि कैसे आजकल रिश्तों में कितनी दरारें आने लग गई हैं, कैसे सोसाइटी फ्रेजाइल हो गई है, कैसे रिश्ते फ्रेजाइल हो गए हैं, कैसे नाजुक हो गए हैं। तो इसीलिए एनहांसिंग सपोर्टिव रिलेशनशिप इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट की फैक्टर टू मैनेज स्ट्रेस। क्योंकि दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन उस दिक्कत में हमें कोई संभालने वाला मिल जाए, हमें सुनने वाला मिल जाए, हमें सपोर्ट करने वाला मिल जाए, तो हम हर क्राइसिस को हैंडल कर सकते हैं, हम हर मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो। कम्युनिटी और पीयर ग्रुप एंगेजमेंट, कैसे हम अपने दोस्तों को, हमारे पास दोस्त हों जो हमारे को सही वक्त में हमारे को गाइड कर सके, हमें हेल्प कर सकें, कैसे हम उनके साथ बैठ के अच्छी अच्छी बातें कर सकें, कैसे उनके साथ बैठ के हम हंस सकें, कैसे पुरानी नई बातें उनके साथ बातें करके अपना दिल हल्का कर सकें, कैसे उनके साथ अपने संघर्ष संघर्ष वाले जो हमारे वक्त है उसके बारे में उनको बता के उनसे उनसे सलाह ले सकें, कैसे कोई कम्युनिटी हो जहाँ पे जाके हम बात कर सकें। जो आजकल तो बहुत सारी व्हाट्सएप कम्युनिटी बन गई हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया कम्युनिटी बन गई हैं। तो इन सब कम्युनिटी में इन्वॉल्व करके हम अपनी सोशल कनेक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। और यही कोविड ने देखा कैसे सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी ने इन सब कम्युनिटी एंगेजमेंट को बढ़ाया। एक 2020-21 का वक्त था, तब लोगों के रिश्ते भी बेहतर हो गए थे, लोग एक दूसरे को समझने लग गए थे, लोग एक दूसरे को जानने लग गए थे, लोग एक दूसरे को वक्त देने लग गए थे, लोगों को समझ में आ गया था कौन कब किससे नाराज हो रहा है।
तो वो कम्युनिटी एंगेजमेंट हमें चाहिए, जरूरी है कि हम अगर हम अपने स्ट्रेस को मैनेज करना है। असर्टिवनेस एंड कम्युनिकेशन ट्रेनिंग, कैसे हमें सही वक्त पे सही बात बोलनी है, किस तरह बोलनी है, किस तरह एक्सप्रेस करना है, ये भी एक तरह की टेक्निक्स हैं, ट्रेनिंग्स हैं जो हम सीख सकते हैं, या हम खुद अपनी इन असर्टिवनेस को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि अगर हम असर्टिव नहीं से होते यूं होते तो हम अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते। जब हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते तो वो भी हमारे लिए स्ट्रेसफुल बन जाता है। तो हमें कोई बात बुरी लगी लेकिन हमें उसे बताना है, तो अगर हम एक्सप्रेस ही नहीं करेंगे सही तरीके से, अग्रेशन असर्टिवनेस में फर्क है। हमें अग्रेसिव नहीं होना, हमें असर्टिव होना है, हमें अपनी बात को सही तरीके से बताना है, दैट इज व्हाट। तो उससे भी हम अपने 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 स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। क्रिएटिंग सपोर्टिव फैकल्टी नेटवर्क्स, वो नेटवर्क जिसमें हम, जो चाहे वो हमारी फैकल्टी हो, चाहे प्रोफेशनल नेटवर्क्स हों, चाहे वो डॉक्टर्स का हो, चाहे वो सीए का हो, चाहे वो टीचर्स का हो, चाहे प्रोफेसर्स का हो, चाहे कॉलेज का हो, वो नेटवर्क बनाएं जहाँ पे हम उनसे बात कर सकें क्राइसिस के वक्त, मुसीबत के वक्त, प्रॉब्लम्स के वक्त, या अच्छे मोमेंट निकाल सकें, आउटिंग्स हैं, पिकनिक्स हैं, गेट टुगेदर्स हैं। तो इन सब के थ्रू हम अपने सोशल इंटरवेंशंस को एनहांस कर रहे हैं। इंप्रूविंग वर्क प्लेस एंड फैमिली एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर वर्क प्लेस, क्योंकि हम वर्क पे अपना काफ़ी टाइम स्पेंड करते हैं। अगर हमारा वर्क प्लेस खुश नहीं होगा, चाहे वो हमारा स्टाफ रूम हो, चाहे वो हमारा डॉक्टर का रूम हो, चाहे वो हमारा नर्सिंग होम हो, चाहे हमारा है हॉस्पिटल हो, हर जगह हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो वर्क प्लेस है वहाँ पे एक अच्छा माहौल रहे, हेल्दी माहौल रहे, लोग खुश रहें, लोग अच्छी तरह खुश होकर बातें करें, लोग हमें प्यार से बात हो, लोग में सद्भावना हो, लोग एक दूसरे को सहयोग दें, सपोर्ट करें। तो ये सारी सोशल इंटरवेंशंस हैं, लगती तो छोटी हैं, लगती तो बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें, बड़ी इन सब के पीछे एक, हर चीज के पीछे एक तर्क है, हर बात के पीछे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो है कनेक्टिविटी। जब ये कनेक्टिविटी बनती है तो हमारा ब्रेन भी कनेक्ट होता है। जब वो ब्रेन कनेक्ट होता है तो हमारा ब्रेन सही वक्त पे सही तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। तो सोशल के पीछे बायोलॉजिकल रीजन भी है। तो सोशल कनेक्टिविटी एंड बायोलॉजिकल कनेक्टिविटी सब एक साथ चलती है। तो ये हमने इस तरह बात की कि किस तरह हम बायोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली और स्पिरिचुअली हम अपनी मदद कर सकते हैं, स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्पिरिचुअल डायमेंशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने अभी कहा था कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताई थी एक बार, डॉक्टर सतीश गुप्ता ने, कि जहाँ जहाँ मेडिसिन खत्म होती है वहाँ स्पिरिचुअलिटी बिगिंस, शुरू होती है। तो इम्पोर्टेंट है आध्यात्मिकता, जो नजरिया है जिंदगी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पिरिचुअलिटी क्या है? कनेक्शन विद समथिंग लार्जर देन वन सेल्फ, हमसे बड़ी कोई चीज है जिसके हम कनेक्ट होते हैं। जैसे मैं ब्रह्म कुमारी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, तो वो कहती है हम आत्मा है लेकिन हमें परमात्मा से जोड़ना है अपने आप को। तो कनेक्टिंग विद समथिंग लार्जर देन वन सेल्फ, गॉड, नेचर, ह्यूमैनिटी, हम उसमें पर्सनल वैल्यूज होते हैं, पर्पस होता है, एक इनर पीस और एक्सेप्टेंस आता है, एक शांति मिलती है उस स्पिरिचुअलिटी में। वो रिलीजियस भी हो सकती है, साथ में प्रैक्टिसेस, नॉन रिलीजियस भी हो सकती है, दोनों, जिसमें मानता है। इट कैन फोस्टर मीनिंग मेकिंग एंड एडवर्सिटी। जब सब कुछ काम नहीं करता तब आप कहते हो हाँ, ऊपर वाला मुझे रास्ता दिखाएगा, वो मेरे लिए अच्छा करेगा, वो मेरे साथ बैठा हुआ है, वो मुझे रास्ता दिखाएगा। जब कुछ नहीं करता तो वो मुझे एक सही रास्ता निकाल लेता है मेरे लिए, जो वो करेगा मेरे लिए अच्छा करेगा। तो कितनी भी मुसीबत होती है तो वो हमारे को एक जिंदगी का मतलब निकालने के लिए हमें रास्ता क्रिएट करता है। तो दैट्स व्हाट इट कैन फोस्ट अ मीनिंग मेकिंग इन एडवर्सिटी, दैट्स व्हाट इट इज। तो ये अलग अलग इंटरवेंशन स्पिरिचुअल, जिसमें वन ऑफ देम इज अगेन माइंडफुलनेस एंड कॉन्टम्पलेटिव प्रैक्टिसेस, अगेन मेडिटेशन। जैसे हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, हमारे ब्रह्म कुमारी राजयोग में, हम सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और मेडिटेट करके हम अपने अंदर, मेडिटेशन करके वो पावर लाते हैं, वो स्पिरिचुअल पावर्स अपने अंदर अपने अंदर अपने आप को भरते हैं। एंड देन सम पीपल डू प्रेयर, सम पीपल रिफ्लेक्ट बैक। सो ऑल दीज आर मल्टीपल प्रैक्टिसेस which people do it, different people are there, different ways are there, and some are purpose and meaning focused intervention, like identifying the core values, जो कोर वैल्यूज होती हैं, कि वो क्या कोर वैल्यूज हैं जिस पे आपको काम करना है, जिसके ऊपर आपको हर चीज को ढूंढना है। जैसे हमारे राजयोग के अंदर है ज्ञान, योग, सेवा, धारणाएं, तो वो 4 हैं। तो वो उन कैसे हमें ज्ञान लेना है, कैसे हमें योग करना है, कैसे हमें सेवा करनी है, और कैसे कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। तो ये कोर वैल्यूज को हमें हेल्प करता है, हमें समझाता है, और वो हमें आगे लेके जाता है। तो वो हमारे साथ हमेशा रहता है, वो हमें हेल्प करता है। Aligning action with personal beliefs, that's what. And gratitude practice, very important, and one of the simple way to maintain a gratitude journal, और इसे तो कहते हैं नहीं, आप इसे बांटिए,
जितना ग्रेटिट्यूड आप कर सकते हैं लोगों को लेकर करिए, लेकिन दिल से करिए. The gratitude really makes you big. Gratitude really makes you humble. Gratitude really keeps you grounded. So these are some of the things, and that is what we need to learn and practice in our own life. So mindfulness, contemplative practices, purpose and meaning focused interventions, gratitude practices, forgiveness and acceptance. कहीं ना कहीं हम लोगों को माफ करना भूल जाते हैं, और माफ करना बहुत जरूरी है. जब तक छोड़ोगे नहीं तब तक भरोगे कैसे? We need to let go, and then only we are able to fill ourselves with peace and happiness. That's what. And when we are not able to forgive things and people, what happens is that it constantly gives us pain. वो पेन, वो स्ट्रेस हमारे साथ चलता रहता है. हम बातों को भूलते नहीं और लोगों को भूलते नहीं है. ना बातों को भूलते हैं और ना लोगों को भूलते हैं. वो हमें परेशान करता रहता है. So once we are able to forgive and accept, and that's where the spiritual practices help you to forgive and accept the way they are. They accept the way the God has made them, the reality. Spiritual counseling or guidance, support from faith leaders and chaplains. like जैसे हमारे राज्यों में दीदी लोग होते हैं, हमें वो कांस्टेंट समझाते हैं हमारे को. हमारे बाकी फेथ लीडर्स होते हैं, chaplains होते हैं हर जगह जगह. तो all these are helpful, and rituals and practices are there. Prayer, chanting and ceremonies are there. You practice all of them together. जैसे मैंने बोला, हमारे योग है, धारणा है, ज्ञान सेवा है. तो you do all of them, and once you're able to practice all these, it gives you a power. And the most important thing is connecting with the nature. Ultimate, जिसको लोग अलग अलग नाम से भी बोलते हैं. नेचर थेरेपी कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग कनेक्टिंग विद नेचर बोलते हैं, कुछ लोग पीस विद नेचर बोलते हैं, कुछ लोग हार्मनी विद नेचर बोलते हैं. तो कनेक्शन विद नेचर, एक्सपीरियंसिंग दैट ऑ एंड ट्रांसेंडेंस, एक्सपीरियंसिंग द ग्राउंडनेस. जब आप वॉक करते हैं या नेचर के अंदर बीच में बैठते हैं या वाटरफॉल को देखते हैं या बर्ड्स को देखते हैं, एब्सोल्युटली यू फील you're grounded. You absolutely feel this. So that is what are these multiple spiritual practices are there. तो इन सबको हमें इंटीग्रेट करना है अपनी जिंदगी में, चाहे वो बायोलॉजिकल हो, चाहे वो साइकोलॉजिकल हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो. हम इन सबको अलग अपने लिए अपनी एक अलग कॉकटेल बनानी है. हमारी अलग एक कॉकटेल बनेगी, हमारा एक अलग बनेगा कि मेरे को क्या देना है. मुझे अपने बायोलॉजिकल में मुझे अपने साथ अपनी एक्सरसाइज करनी है, योगा करनी है. साइकोलॉजिकल में अपनी कोपिंग स्किल बढ़ानी है. सोशल में मुझे अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना है. और स्पिरिचुअल में अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से एनहांस करनी है. तो ये मेरा मेन्यू है, ये मेरा कॉकटेल है, ये मेरी जिंदगी का एक मंत्र है. मुझे उसे फॉलो करना है और इन चारों को लेके आगे बढ़ना है. So a person who can build their own holistic stress management toolkit. तो कुछ लोग इसको टूल किट भी बोलते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट भी बोलते हैं, कुछ लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल किट बोलते हैं, कुछ लोग इसे अपने सेल्फ मेन्यू भी बोलते हैं. कुछ लोग अपना कहते हैं टेलर मेड प्रोग्राम भी बोलते हैं. अलग अलग तरीके से लोग इसे बोलते हैं, और कई लोग तो इसके प्रोग्राम भी चलाते हैं ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड. बट आई बिलीव that you can make it your own program. I believe you can make your own toolkit. I believe you're the best person to design your own program. जैसे हम बाहर जाके खाना जो जरूर खाते हैं कभी कभी, लेकिन घर में हम जब अपना खुद ही खाना बनाते हैं, वो हमारा सबसे बेस्ट मेन्यू होता है. तो उसी तरह इस स्ट्रेस को, जो हमारी जिंदगी का अंदरूनी हिस्सा है, जो हर जगह फैला हुआ है हमारे, उसमें हमें कैसे हैंडल करना है. तो ये होलिस्टिक स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल किट, by combining strategies from all domains, biological, psychological, social and spiritual, to our particular issues and inclination, कि हमें फॉलो करनी है. So in the end, the final take home message is stress affects the whole person. whole person मतलब पूरी बॉडी को इम्पैक्ट करता है, इमोशनली, फिजिकली, रिलेशनशिप्स, और आपकी बॉडी के हर एस्पेक्ट को, आपकी बॉडी के अलग अलग पार्ट को अफेक्ट करता है. स्ट्रेस किसी को नहीं छोड़ता, जैसे मैंने बोला दीमक की तरह खोखला कर देता है. इंटीग्रेटिंग इंटरवेंशंस अक्रॉस बॉडी, माइंड, relationships and spirit enhances the healing, bio, psycho, socio and spiritual part. तो इन सबको इंटीग्रेट करना अपने लिए, अपनी हीलिंग करने के लिए. अपना ट्रीटमेंट नहीं कर रहे, अपने को हील कर रहे हो, अपने को भर रहे हो, अपना फायदा उठा रहे हो. भगवान ने हमें इतनी प्यारी बॉडी दी है, इतना प्यारा हमें माइंड दिया है, हमें उसका बेस्ट से बेस्ट फायदा उठाना है.
रोज अपने अपने शरीर की सेवा करनी है। जो ये रथ है जिसको हमें संभालना है, रोज उसको हमें चमकाना है, रोज उसे आगे बढ़ाना है। सो दिस होलिस्टिक मॉडल fosters a comprehensive well-being, resilience, and inner growth. And that is what is a nutshell. Thank you very much. Thank you very much for giving me this opportunity. We're open for question answers. We can take question answer for next 15-20 minutes and before we call it off a day. Thank you, sir. Thank you once again for giving me this opportunity. धन्यवाद डॉक्टर दीपक जी। तनाव प्रबंधन के लिए एक समग्र सशक्तिकरण, एक जैव मानसिक सामाजिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण, जिस विषय पर आपका सूचनाप्रद और प्रेरणादायक व्याख्यान देने के लिए हम आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं सर। आपने तनाव के हॉलिस्टिक मॉडल और उसके प्रभावों, कैसे बाहरी कारक हमारे आंतरिक तंत्र को प्रभावित करते हैं, बहुत ही स्पष्टता से समझाया। आपने ये भी बताया कि तनाव प्रबंधन केवल लक्षणों के उपचार तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शरीर, मन, संबंधों और आत्मा को संपूर्ण रूप से पोषित करने वाला एक समन्वित दृष्टिकोण है। आपका वैज्ञानिक ज्ञान और पारंपरिक समझ के साथ साथ साहित्य, कला और सामुदायिक भागीदारी को जोड़ने का दृष्टिकोण इस रिफ्रेशर कोर्स की बहुविषयक भावना को सशक्त करता है। हमें विश्वास है कि आपके व्यवहारिक सुझावों और समग्र दृष्टिकोण ने हम सभी को चिंतन करने और सीखने के लिए बहुत कुछ दिया है। हमने अपने प्रतिभागियों से कुछ प्रश्न पूछे हैं और समय की सीमा को देखते हुए हम कुछ एक प्रश्नों का उत्तर भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। कुछ टिप्पणियां हैं। सभी प्रतिभागियों से आग्रह है कि कुछ अगर प्रश्न उनके हैं तो चैट बॉक्स में डालिए। डॉक्टर रश्मि मेनन पूछती हैं, सर यू सेड फॉरगिव एंड फॉरगेट हेल्प्स फॉर स्ट्रेस फ्री माइंड, बट इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल इन टूडेज लाइफ। देखिए, जिंदगी में हर चीज संभव है और हर चीज असंभव भी है रविंदर जी। संभव के आगे लिखा एक अ लगा दे तो असंभव बन जाता है। क्लियर? उसी तरह है, हम छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि हमने मुट्ठी में पकड़ा हुआ है, और अगर हम इस मुट्ठी को खोल दें, जो हम रोज खोलते हैं, या जब हम शरीर को छोड़ते हैं, खोल के जाते हैं, तो सब कुछ छूट जाता है। तो उसी तरह फॉरगिव करना हमारे हाथ में है और चिपका के रखना भी हमारे हाथ में है। मैं बहुत सिंपल टेक्निक बताऊंगा फॉरगिव करने की। मैंने कोविड में बहुत प्रैक्टिस करी थी। बहुत प्रैक्टिस मतलब बहुत लोगों को इसके बारे में कराया था। कोई ऑनलाइन चलता था तो मैं ऑनलाइन बहुत सारी वर्कशॉप करता था, और मैंने ये टेक्निक के थ्रू, जिसको हम बोलते हैं पेपर टेक्निक, आपको सिर्फ एक कागज चाहिए और एक कलम चाहिए। तो एक पेपर और पेंसिल चाहिए आपको। उस पेपर और पेंसिल पे क्या करना है, आपको 5 मिनट अकेले बैठना है अपने लिए, है ना। कुछ लोग आजकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी करते हैं, लैपटॉप, मोबाइल, आईपैड का भी। लेकिन एक पेपर लीजिए, क्योंकि वो एक अच्छा देसी स्टाइल है जो आपको बहुत मदद करता है, आप बेटर कनेक्ट होते हैं उससे। तो एक पेपर लीजिए, पेपर पे जो आपके मन में है, जो आप फॉरगिव करना चाहते हैं, जो आपके मन में भारी है, जिसको आप लेके 10 15 20 साल से अपने स्कूल बैग की तरह ढो रहे हैं, रोज उस अटैची को लेके जाते हैं और रोज उस अटैची को लेके वापस आते हैं, अटैची खोल नहीं पाते। उसी तरह अब जो आपके अंदर है, उस बात को लिखिए कागज के ऊपर। ज्यादा लंबा नहीं, 2 4 पैराग्राफ लिख दिया या 1 पेज लिख दिया, ज्यादा मन है तो 2 3 पेज लिख दिए। और उसको लिखने के बाद अपनी कलम को, पेन को साइड में रखिए और उस पेज को दोबारा पढ़िए। आपको 2 3 मिनट लगेंगे, क्योंकि आप ही जिंदगी आपने पढ़ा होगा तो आपने लिखा है, तो 2 3 मिनट में उसको पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद एक लंबी सांस लीजिए, स्टेप नंबर 3। तो स्टेप नंबर 1 हो गया, आपने कागज पेंसिल लिया। स्टेप नंबर 2 आपने उसमें लिखा। स्टेप नंबर 3, इसके 6 स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 3, आपने उस कागज को फोल्ड किया रुमाल की तरह। रुमाल होता है ना हमारा, जिसको शौक होगा रुमाल रखने का जेब में, तो आपने रुमाल की तरह से फोल्ड किया। फोल्ड करते करते आप यहां तक लेकर आ गए, और अगर और फोल्ड करते हो यहां तक लेकर आ गए। ये स्टेप नंबर 3 हो गया। फिर आप स्टेप नंबर 4, आप गए डस्टबिन के पास, कूड़ेदान के पास।
चाहे छोटा कूड़ेदान हो, बड़ा कूड़ेदान हो, चाहे वो कवर्ड वाला हो, चाहे वो अनकवर्ड हो, चाहे उस पर लिड हो या ना हो, चाहे हाथ से खोलने वाला हो, पैर से खोलने वाला हो, ठीक है ना, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। अब उसके पास गए और वहां जाने के बाद आपने उस कागज को फाड़ा जान से, दिल से, जैसे आज पूरी एनर्जी आ गई हो, पूरे आक्रोश के साथ, पूरे जोश के साथ, जज्बे के साथ अपने उस कागज को फाड़ा, और फाड़ के आपने उसके अंदर फेंक दिया। स्टेप नंबर 4। और स्टेप नंबर 5 जो आपने किया, आपने अपने हाथ को साफ किया और एक लंबी सांस ली, जो आपने सांस शुरू में भी ली थी। और स्टेप नंबर 6, उसके बाद आपने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मन में बोला, आई एम फ्री नाउ, मैं मुक्त हूं, आई एम फ्री, थैंक यू गॉड, शुक्रिया ऊपर वाले का कि मुझे आज मुक्ति दी, मैं मुक्त हूं। ये 6 स्टेप्स हैं रविंद्र जी, जिसको करने में आपको सिर्फ 2 से 5 मिनट लगेंगे, कभी कभी 8-9 मिनट भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग आपने लंबा लिखा हो तो। लेकिन 2 से 5 मिनट में आप अपनी जिंदगी में एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, और जो मुक्ति आपको अभी तक नहीं मिली थी, उस मुक्ति से आप निकल सकते, उस मुक्ति लाके अपने आप को एक हल्का महसूस कर सकते हैं। ज्ञान में एक बात, बहुत बहुत अच्छी बात को कहते हैं हमारे ज्ञान में, राजयोग में, जब आप इन सब चीजों को छोड़ोगे तभी आप फरिश्ते की तरह उड़ोगे। जब नहीं छोड़ोगे तो फरिश्ते की तरह, वो सफेद कबूतर की तरह कैसे उड़ोगे? देखिए, तो इस तरह से आप चीज कर सकते हो। आई होप मैं डॉक्टर रश्मि जी को रश्मि जी के सवाल का जवाब दे पाया हूं। बहुत सुंदर सर, बहुत जटिल समस्या का समाधान आपने इतनी सरलता से दिया है, ये तो प्रतिभागियों ने सोचा नहीं होगा। खैर, बहरहाल अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर सुनील कुमार जी पूछते हैं, फिलोसॉफिकल काउंसलिंग ऑल्सो हेल्प्स अस इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस, इन विच सेक्शन वी कैन पुट इट इन 4 बेसिक अप्रोचेस? वेरी गुड। तो इसको हम साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल के बीच में डाल सकते हैं। तो उनका सवाल है कि बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल के में कहाँ डाला जाए इसको? फिलोसफी, क्योंकि फिलोसफिकल हेल्प करती है। तो आप कहीं ना कहीं, जब हम फिलोसफिकल काउंसलिंग करते हैं तो उसमें कुछ एलिमेंट होता है साइकोलॉजिकल और कुछ एलिमेंट होता है स्पिरिचुअल, कुछ मानसिक, कुछ मनोवैज्ञानिक और कुछ आध्यात्मिक। उसका एक सूक्ष्म सूक्ष्म कॉम्बिनेशन होता है मेरे मुताबिक। तो उनको कर सकते हैं। तो कौन किसकी तरफ ज्यादा जा रहा है वो डिपेंड करता है उस ट्रेनर के ऊपर, उस इंसान के ऊपर, जो जिसको उसमें माहिरता है, इसमें एक्सपर्टीज है, वो उसके हिसाब से इधर उधर थोड़ा हो जाता है। तो वो इसका वो। अगला सवाल डॉक्टर प्रियंका कुलहरी जी का है। हाउ टू डील विद पीपल हु कॉल देमसेल्व्स योर फ्रेंड्स बट आर द वन हु आर डिस्ट्रॉइंग योर रेपुटेशन एंड सो सिमलेस दैट दे सेड सफेद झूठ ऑन योर फेस व्हाइल यू नो द ट्रूथ? आपके सवाल में खुद ही जवाब है। आपने इतना बड़ा सवाल पूछा और उसी में जवाब दे दिया आपने आखिरी लाइन में। तो आप ये कह रही हैं कि आपको सच तो पता ही है, और सच तो हमेशा कड़वा होता है, सच आखिरी में हमेशा जीतता है। लेकिन हाँ, सच के ऊपर बहुत ज्यादा टेस्टिंग होती है, बहुत परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है सच को, तभी उसको सच बोला जाता है। तो सच को बहुत बहुत कठिन कठिन परीक्षाओं से जूझना पड़ता है बहुत बार। यही सच की ताकत और सच्चाई है कि वो आखिरी में वो सच ही निकलता है। तो इसीलिए अगर आप अपना अच्छा काम कर रही हैं, और अगर आप सही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, और आपको पता है कि आप सच हैं, सच्चाई से कर रही हैं, सच्चाई और सफाई, तो अगर आप में सच्चाई भी है, सफाई भी है, और आप अपने काम को सही तरीके से कर रही हैं, आप अपना कार्य करती रहिए, आगे बढ़ती रहिए। लोग आएंगे, चले जाएंगे, लोग आएंगे, चले जाएंगे, लाइक गेस्ट फैकल्टी। यू बी द
permanent regular faculty and keep on doing your great work. That is what is that. लेकिन आपकी रेपुटेशन अगर वो हिलाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपके अंदर आपकी सच्चाई और सफाई होगी, तो एक वक्त आएगा, चाहे हो सकता है कभी महीना लग जाए, कभी 2 महीने लग जाए, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, कईयों को सालों लग जाते हैं, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे आपकी सच्चाई और सफाई आगे आएगी। और जो कहीं ना कहीं हो सकता है, लोग कहते हैं ना, एक बहुत पुरानी कहावत है, रविंद्र जी, देर आए दुरुस्त आए। सच्ची में इतने सालों के तजुर्बे के साथ और इस दिल्ली शहर में रहने के बाद मैं यही कह सकता हूं, सच्ची में देर आए लेकिन दुरुस्त आए। जी बहुत खूब सर। गुमराह तो वो लोग हैं जो घर से निकले ही नहीं, तो आना पहुंच जाना ज्यादा जरूरी है। एक सवाल एक्सपीरियंस के रूप में आदित्य प्रताप सिंह जी पूछ रहे हैं। यस्टरडे आई वाज टॉकिंग विद माय फ्रेंड हु इज वेरी हेल्थ कॉन्शियस। ही ऑफन थिंक्स एक्सेसिवली अबाउट हिज हेल्थ, which sometimes lead to significant stress. For example, after hearing news about a neighbor's cardiac arrest, he became very anxious and started fearing that it could happen to him at any moment. How should such health related anxiety be managed? And what would you suggest in such cases? I think ये कई लोगों के साथ केस है कि छोटी सी कोई सिम्टम आता है, वो गूगल करते हैं और उसके बाद एंजाइटी लेवल बढ़ते चले जाता है। तो इस केस में क्या सजेशन सर? देखिए, इसको लोग अलग अलग नाम से बोलते हैं। कुछ लोग हेल्थ रिलेटेड एंग्जाइटी बोलते हैं, कुछ लोग हाइपोकॉन्ड्रियासिस बोलते हैं, कुछ लोग हाइपोकॉन्ड्रिकल एंग्जाइटी बोलते हैं, कुछ लोग हेल्थ इलनेस रिलेटेड एंग्जाइटी बोलते हैं। तो अलग अलग नाम है, करेक्ट। और वो आपने सुना, फिर आपको लगता है कि मुझे ना हो जाए, फिर आपके अंदर डर बैठ जाता है, और आपको लगता है कि मुझे दोबारा से मुझे हार्ट अटैक ना हो जाए, या मैं कोलैप्स ना कर जाऊं, या मुझे स्ट्रोक ना हो जाए, या मुझे लकवा ना हो जाए, मुझे पैरालिसिस ना हो जाए। तो आपने खबर सुनी, और एक खबरें तो आपको पता है इतनी ज्यादा हो गई हैं, सोशल मीडिया हो, चाहे पेपर हो, चाहे कहीं भी हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, कहीं ना कहीं खबर आती रहती है, रोज ही कोई ना कोई खबर आती है। हमारे डॉक्टर्स ग्रुप में भी कोई ना कोई डॉक्टर की खबर आती रहती है रोज, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है ना। तो पॉइंट ये, आपके खबरें तो आनी रुकेंगी नहीं, या तो आप सबको डिलीट कर दो, सोशल मीडिया को, तो आप इन खबरों से दूर हो जाए, लेकिन खबरें तो रुकेंगी नहीं। फिर पढ़ो, अगर आप वो खबरें बंद कर दो, पड़ोसी बता देगा कि ये हो गया जी, ये हो गया, कॉलोनी में पता चल जाएगा, शहर पे जाएंगे तो कोई किसी को बता देगा, नहीं तो अखबार में कोई खबर आ जाएगी। तो खबरें तो आएंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन खबरों के साथ जो हम साइकोलॉजिकल बात कर रहे थे, हमें अपनी मानसिकता पे काम करना है। और यहां पे आते हैं, सबसे बड़ी ताकत होती है सम्मान की, जो एफर्मेशन होती है। ठीक है, वो आई खबर, लेकिन अगर अगर आप अपने में सम्मान देते हो सुबह उठ के रोज, तो वो आपको मदद करेगा आगे बढ़ने की, कि हाँ, मैं बिल्कुल सही हूं, मैं अपना ध्यान रख रहा हूं, मैं अपनी हेल्थ का केयर कर रहा हूं। सच्ची में अगर केयर करनी पड़ेगी, यानी कोई मैजिक होगा, आपको अपना ध्यान रखना ही पड़ेगा, आपको योगा, एक्सरसाइज, वॉक जो भी करते हैं करना पड़ेगा, जो हैबिट्स हैं वो संभालनी पड़ेंगी। तो जब आप अपने को सुबह सुमान बोलते हो कि मैं निरोगी हूं, मैं फिट और हेल्दी हूं, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा आगे और भी अच्छा होगा, वट एवर इज हैपनिंग गुड, एंड वट एवर विल हैपन बेस्ट विद मी। तो ये सारे एफर्मेशंस, सुमान, आपके अंदर पॉजिटिविटी, एक ऊर्जा क्रिएट करेगी। और प्लस आपके पास 2-3 डॉक्टर्स होने चाहिए अच्छे, जिनके पास आप कंसल्ट कर सकते हैं। हार्ट का डॉक्टर हो गया, नर्व्स का डॉक्टर, एक बढ़िया फिजिशियन। तो एक बड़ा फिजिशियन होगा, वो आप जाओगे, उसके बाद बोलेगा नहीं, आपके बिल्कुल गुप्ता जी, आपके सारे टेस्ट सही हैं, बढ़िया फिट हो, मस्त रहो, एंजॉय करो, जाओ मेवा खाओ। जब डॉक्टर ने आपको ग्रीन सिग्नल दे दिया, आपके पास सम्मान की शक्ति है, आपको इससे बड़ा और क्या चाहिए। लेकिन फिर भी अगर वो इतनी बढ़ जाती है एंग्जाइटी, तो फिर तो आपको साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा। वो थिन लाइन है। अगर आपको उसकी वजह से बार बार इतनी घबराहट हो रही है, नींद नहीं आ पा रही, रात को सपने भी ऐसे आ रहे हैं कि आप एस्कॉर्ट्स में खड़े हो या मैक्स में खड़े हो, इमरजेंसी में उठते हो, हाँ, वाइफ कह दो कहाँ बैठा हूं मैं, कहती बेड पे, तो कहते सपने में था मैं आईसीयू में ना हूं, कहते कुछ नहीं है, जाओ सो, पानी पे सो जाओ चुपचाप, है ना। तो अगर वो सपने में सपने आते जा रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं, आपके ऊपर हावी हो रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं आपको साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट या किसी मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक की मदद लेनी ही पड़ेगी। बट आप इस सिंपल तरीके से निकल सकते हो, सम्मान और एक अच्छा डॉक्टर।
और यहीं पे कोविड का मैं एग्जांपल दूंगा। अगर आपको याद होगा, जब कोविड की पहली वेव आई थी तो कितनी इंफॉर्मेशन आई थी। 12 मिनिस्ट्री ने ये बोला कि सही इंफॉर्मेशन की वेट करो, सही चैनल से इंफॉर्मेशन लो। फिर बहुत सारी, जब जैसे जैसे लोगों की सही इंफॉर्मेशन आई, लोगों की मिथ्या चली गई, लोगों में ये डर पैदा हो गया, किसी को ये हो गया, किसी को वो हो गया, बार बार लोग सुबह शाम हाथ ही हाथ धोते आ रहे थे बार बार, तो अलग अलग लोगों में डर पैदा होने शुरू हुए। तो इसीलिए सही इंफॉर्मेशन कौन देगा? आपका डॉक्टर देगा। गूगल तो सब कुछ दे देगा आपको। गूगल खुशखबरी भी देगा, दुख खबरी भी देगा, अच्छी न्यूज गुड न्यूज सब भरी पड़ी है गूगल पे, ये और खासकर एआई पे आजकल। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट ये है कि एक अच्छा डॉक्टर और साथ में अपने आप को एफर्मेशन देना। बहुत बढ़िया। समय सीमा को देखते हुए एक छोटा सा सवाल, हम आखिरी सवाल और ले लेते हैं। डॉक्टर अन्नपूर्णा जी का सवाल है, सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फैंटेसी, डे ड्रीमिंग एंड गाइडेड इमेजरी? क्वेश्चन का इनका जो दिखा नहीं था, हाँ दोबारा बोलिए क्वेश्चन। फैंटेसी सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फैंटेसी, डे ड्रीमिंग एंड गाइडेड इमेजरी? देखिए, फैंटेसी डे ड्रीमिंग जो है, उसमें आप कहते हैं ना, ख्वाबी पुलाव बना रहे हो आप अपने, सब आप एक 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 दुनिया में खो के उसके मजे ले रहे हो, और उसके मजे लेके आप उसमें खो जाते हो। करेक्ट, तो अब फैंटेसाइज वर्ल्ड हो गया। करेक्ट, एक ऐसा वर्ल्ड जो आप क्रिएट करना चाहते हो, जो आप एक्सपेक्ट करते हो कि हो जाए, कि मैं नासा का साइंटिस्ट हूँ, या मैं मून पे जा रहा हूँ शुभम शुक्ला की तरह, या मैं मार्स में जा रहा हूँ, या मैं यहाँ घूमने जा रहा हूँ, या मैं माउंट एवरेस्ट पे खड़ा हूँ झंडा हिला रहा हूँ। तो आप उसमें फैंटेसाइज कर रहे हो। या मैं डिज्नी वर्ल्ड में हूँ, तो आप एक फैंटेसाइज कर रहे हो। या मैं आसमान में कारपेट पे उड़ रहा हूँ, या हवा में उड़ रहा हूँ मैं, तो आप एक फैंटेसाइज कर रहे हो। करेक्ट, तो वहां पे आपकी फैंटेसी है, और तो उसमें क्या वो चीज पूरी नहीं हुई है, वो आप उसकी कल्पना कर रहे हो। अब उस कल्पना को करके, उसके अंदर खो जाते हो। दैट इज योर फैंटेसी वर्ल्ड। क्लियर। विजुअल इमेजरी है एक ऐसी चीज जो आप डेलिबरेटली लाते हो टू गिव यू हैप्पीनेस। विजुअल इमेजरी एक ऐसी चीज है जहां पे आप खुद एक डेलिबरेट अटेम्प्ट लेते हो। तो फैंटेसी में तो आप कहते हो, आप चले जाते हो अनकॉन्शियसली भी, बहुत बार कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली दोनों इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो कॉन्शियसली थोड़ा करते हो, फिर अनकॉन्शियसली, दोनों का आपका इनके अंदर ओवरलैप हो जाता है, और उस कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली आप उस फैंटेसी वर्ल्ड में खो जाते हो। विजुअल इमेजरी में इट्स अ कॉन्शियस डेलिबरेट अटेम्प्ट, कि आप किसी चीज को सोचना, और सोच के अपने आप को रिलैक्स करना, या अपने आप को अच्छा फील कराना। तो विजुअल इमेजरी का जो कॉन्टेक्स्ट होता है, वो हमेशा एक कॉन्शियस एफर्ट होता है, और एक अपने आप को हेल्प करने के लिए होता है। ये होता है विजुअल इमेजरी का यूजली कॉन्टेक्स्ट। फैंटेसी और अपना डे ड्रीमिंग का एक होता है कि आप जस्ट यू गेट लॉस्ट इनटू इट, जिसका कोई फायदा नहीं है, बट यू आर जस्ट हैविंग अ, एक तरह का कुछ टाइम के लिए सुकून जरूर मिल रहा है, बट यू आर गेटिंग लॉस्ट इनटू इट। और इसमें कॉन्शियस अनकॉन्शियस दोनों एलिमेंट आ जाते हैं कुछ हद तक। तो दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस इस थिंग दैट, बहुत थिन लाइन है दोनों के बीच में। बट विजुअल इमेजरी इज यूज एज अ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन। ड्रीम, सॉरी, फैंटेसी एंड डे ड्रीमिंग जो एक आम आदमी घर में बैठे बैठे करता है, और जिसको वो कभी कभी इंजॉय भी करने लग जाता है, लेकिन कभी कभी जो इतना प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो भी एक कंडीशन है जो बीमारी का रूप ले लेती है फिर वो। तो बहुत थिन लाइन है इन दोनों के बीच, रविंद्र जी। सर एक आखिरी सवाल सरस्वती जी पूछ रही हैं, nowadays few people take your humbleness, down to earth and gratitude as your weakness. How to cope up with it? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, और आखिरी सवाल है आपका। देखिए, आपकी सादगी का और आपके सीधेपन का कोई फायदा उठा रहा है ना? अब उससे कैसे कोप अप करें? दो चीजें हैं। पहली बात तो, सादगी और सीधेपन का होने का तो आप ही ने निश्चय किया ना, कि मैं सिंपल हूं, मैं हम्बल हूं, मैं लोगों को माफ करता हूं, ग्रेटिट्यूड देता हूं। ये आपकी चॉइस है, वेरी क्लियर। इट इज योर चॉइस। यू वांट टू हैव वनीला, यू वांट टू हैव चॉकलेट, तो ये आपकी चॉइस है।
आपने चॉइस ली कि मैं इस जिंदगी को जीना चाहता हूं। क्यों ली आपने चॉइस? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सिंपल लिविंग में, हम्बलनेस में, ग्राउंड टू अर्थ में, डाउन टू अर्थ में और ग्रेटिट्यूड में आपको कहीं ना कहीं मजा आता है, अच्छा लगता है। लेकिन इस सफर में ऐसे लोग होंगे जो सिंपल हम्बल नहीं होंगे, उनका अलग नेचर भी होगा। कुछ कनिंग होंगे, कुछ मैनिपुलेटिव होंगे, कुछ क्लेवर होंगे, कुछ आपको मैनिपुलेट करेंगे, कुछ आपको पुट डाउन करेंगे, वो लोग आएंगे। तो जैसे मैं अभी कुछ टाइम पहले जवाब दे रहा था, आपका जो सफर है वो आपने चूज किया, तो आप उसे चलते रहिए। आप दूसरों की वजह से अपना सफर मत बदलिए, आपकी चॉइस, आप चलते रहिए। क्योंकि जब आपका सफर चलेगा इस हम्बलनेस का, डाउन टू अर्थ ग्रेटिट्यूड का, लोगों को दिखेगा। जब 1000 लोगों को दिखेगा, उसमें 4-5 लोग हैं जो जिनको बदहजमी होगी, जिसमें 8-10 लोग हैं जो आपका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपकी ताकत होगी वो आपको आगे बढ़ाती रहेगी। आप दूसरों से अपने आप को हिलाइए मत, लेकिन अपनी सादगी से, अपनी सादगी से, अपनी सभ्यता से, अपने सच्चेपन से, अपने अम्बलनेस से आप लोगों को हिलाइए। तो जब लोग आपको इंपैक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको अपने पे और काम करने की जरूरत है। अगर आप लोगों की अशांति से खुद अशांत हो रहे हो, तो आपको अपने अंदर शांति और समेटना, शांति और अपने अंदर वो चीज पे और काम करना है। तो जब आपका गुब्बारा होगा भरा हुआ, तो लोग आएंगे, चले जाएंगे, लोग छेड़ेंगे लेकिन निकल जाएंगे। हाँ, ये टेस्ट या परीक्षाएं तो देनी पड़ेंगी जब इस दुनिया में आए हो। तो इन परीक्षाओं से कोई नहीं बचा, चाहे छोटा इंसान हो चाहे बड़ा इंसान हो। हर इंसान को परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, हिसाब पूरे करने पड़ते हैं। उस हिसाब को पूरा करना पड़ेगा, लेकिन आपकी आपकी जो स्ट्रेंथ होगी, आपकी सादगी होगी, आपके जो पिलर्स होंगे, वो आपको जरूर उससे निकाल देंगे। लेकिन दूसरों की वजह से अपने आप को मत बदलिए। इनफैक्ट अपने पे और स्पिरिचुअल काम करिए, अपने पे और साइकोलॉजिकल काम करिए, एफर्मेशन और यूज करिए, सोमान को और इस्तेमाल करिए। सुबह निकलने से पहले सोमान और यूज करिए। उस इंसान को भी सम्मान दीजिए, सकाश दीजिए, वाइब्रेशन दीजिए जो आपके रास्ते में रुकावट दे रहा है। ये पावर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की। जो आपको रुकावट दे रहा है उसको माफ करिए, उसको वाइब्रेशन दीजिए। तो वो जब उस तक वाइब्रेशन पहुंचेंगी, तो वो कहीं ना कहीं मोल्ड होगा। दैट इज द पावर ऑफ कॉस्मिक एनर्जी एंड स्पिरिचुअलिटी। गॉट इट? बहुत खूब सर। मुझे लगता है ये टॉपिक अपने आप में इतना ब्रॉड है, इतना इंटरेस्टिंग है और इतना लोगों से जुड़ा हुआ है कि इस पे हम बेइंतहाई बात कर सकते हैं। हाँ लेकिन कुछ जी। सीमाएं हैं हमारी सर, और समय सीमा को ध्यान में रखते हुए मुझे लगता है कि वक्त हो चला है हमारा ऑफिशियल वोट ऑफ थैंक्स का। रिस्पेक्टेड डॉक्टर दीपक गुप्ता जी, डिस्टिंग्विश्ड पार्टिसिपेंट्स और डियर कलीग्स, आप सभी को नमस्कार। As we draw this insightful session to a close, it is my honor and privilege to deliver the vote of thanks on the behalf of organizing team of refresher course on this holistic empowerment for stress management, a multidisciplinary approach, आत्माराम सनातन धर्मा कॉलेज एंड रामानुजन कॉलेज। सबसे पहले मैं हमारे आज के वक्ता, विशिष्ट वक्ता डॉक्टर दीपक गुप्ता जी का हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने तनाव प्रबंधन को जैविक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से समझाने के लिए अपने अनुभव, ज्ञान और संवेदनशीलता के साथ हम सभी को समृद्ध किया। Your insights on stress not merely as a clinical concern, but as a human experience needing holistic attention. Through this bio, psycho, socio, spiritual model, holistic model, have opened new dimensions of thinking for all of us. You have not only deepened our understanding, but also offered practical approaches that integrate empathy, science, and spirituality. Something extremely relevant in today's world. डॉक्टर गुप्ता, आपकी बातों ने न केवल हमारे ज्ञान को विस्तार दिया, बल्कि हमें आत्मचिंतन और आत्म सशक्तिकरण की ओर भी प्रेरित किया है। I would like to thank all the participants for your attentive presence and engaging questions. A big thanks to our dynamic principal, Professor Yantosh Kumar Jha sir, our IQC coordinator, Professor Vinita Tuli ma'am, and all the organizers for their trust and support. Thanks to Dr. Abid Hussain and in fact the entire technical team for their seamless coordination behind the scenes. हम आशा करते हैं कि इस सत्र से प्राप्त विचार और अनुभव न केवल हमारे पेशेवर जीवन में, बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी तनाव से बेहतर ढंग से निपटने में हमारी मदद करेंगे।
With that, we express our heartfelt gratitude once again to Dr. Deepak Gupta for enriching and thought-provoking session. Thank you so much, sir. थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू प्रिंसिपल सर को वंस अगेन फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सर मुझे बार बार निमंत्रण देते हैं, बार बार बुलाते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने मन की बात आप लोगों तक पहुंचा पाता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस अस ऑल, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद सर, धन्यवाद।